ecosystems and killing living beings. Wildlife populations have declined by 68% since 1970. Air, land and water, we have used every natural resource and left it either polluted or extinct. Microplastics are now found from the deepest oceans to the highest peaks. If we do not reduce our plastic consumption drastically, it is estimated that by 2050 there will be more plastic in the ocean than fish. Things are at the tipping point. Every choice that we make, every action that we take, echoes in the natural world long after we are gone. Today we stand at a juncture that was chosen for us by those who came before us. This is a critical time in the history of our planet, and we must make the right choices. India has always inspired the world with innovative solutions to complex problems. Sustainability is embedded in the Indian way of life, in our tradition and culture. From an ambitious net zero by 2030 target for Indian Railways, the fourth largest railway network in the world, to the world's largest affordable LED for all initiative, to transforming lives of millions of women by providing fuel gas for cooking and heating, to decarbonization through green hydrogen, India is spearheading the quest for a sustainable planet. Act now. Close that tab. Switch off the engine. Recycle, nurture, grow, heal, breathe. We can resolve the climate crisis. The answer lies with us, in the smallest of decisions that we take every day. Our choices will ripple through time and can heal our planet. We can choose to become pro-planet people. LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। Good morning everyone. It is with great joy and enthusiasm that I welcome you all to today's workshop on health and wellness, a timely and important initiative focused on enhancing our understanding of well-being in all its dimension, which is also a part of Mission Life by Government of India. We just now saw the shloka, Vastaste anamiva ayakshama asabhyam santu prati prasutaha dirgha ayu pratibuddhyamana Vayam Tubyam Baliddaha Siyama. This is from Atharva Veda, which means we aspire to live long, our children too should live long and be free from sickness and consumption. We are reared in the lap of Mother Earth. May we have a long life, we are watchful, alert and sacrifice all for her. This reminds us about the significance of a healthy lifestyle and sustainable lifestyle. The word life in the mission life stands for lifestyle for environment. Today there is a need for all of us to come together and take lifestyle for environment forward as a campaign, as just now we saw Shri PM Modi, Narendra Modi ji said. This can become a mass movement towards an environmentally conscious lifestyle. India is the first country to include life in its nationally determined contributions.
India will put forward and propagate a healthy and sustainable way of living based on its traditions and the values of conservation and moderation, including through a mass movement of life, as a key to combating climate change. In the midst of our busy lives, we often overlook the most valuable asset we possess, that is our health. This workshop aimed to shed light on practical ways to lead a healthier, more balanced life, physically, mentally, and emotionally. First, I would like to extend a warm and respectable welcome to our director, Professor M.G. Thakkar. So your visionary leadership and constant encouragement have always been a guiding force behind initiatives that promote holistic health. As you mentioned during the Yoga Day, that program such as healthy lifestyle and sustainable life should not be restricted to one day in a year such as Yoga International Day, but should continue. That encouraged us to come with this workshop. We thank you for joining us and looking forward for your inspiring words. I request Dr. Jyoti Srivastava, Convener Yoga International Committee, to come onto the stage and welcome Director BSIP Professor M.G. Thakkar with a plan and request to say a few words about the workshop and healthy and sustainable life. Sir, please. I request Arya Pandey to assist. Symbolizes health and prosperity and positive energy. Good morning and Jai Shri Krishna. Just a week ago, 21st of June, the longest day of the year, I think, and the World Yoga Day. We discussed amongst only few participants, those who were actually not needed, but those who were needed in that workshop, the Yoga Days exercise, they were not present. So I appeal everybody from today onwards that please do yoga at your home. It is not one day job. We discussed with Jyoti ji and others, and I think Prem Raj, Udayam, I really appreciate their initiatives. Out of that, I can give you a little gist of the entire event, and of course, it is not of that particular day's gist, but it is all regarding everybody's question mark every day, that we always talk of our Vedas and the Atharva Veda, many sloka verses, they give so many different types of teachings for the healthy life, sustainable life, living style. The Gita also gives us so much of teaching to live and let live others. But there is one question always in our mind: what to follow, how to follow. And for that, I think today's workshop is been arranged by the committee, yoga committee. So please, I think it is a kind of podcasting, the question and answer. So please follow these all, because it is, I think the questions came from you only. So not directly question and answer, but somebody is sitting here and questioning to the mentor. So please follow this all sayings from the mentors, and these are all the actually answers from you, for you only. So as a matter of fact, if I can say how to, I mean, on behalf of me, we discussed with Devesh also regarding the same points. To live healthy life is very simple.
but we make it complicated. The thing is only we have to understand ourselves, our body. If you understand your body, their entirety, it is very difficult, I tell you. हम जानते हैं सूरज, चंद्र, तारा, बहुत बड़े बड़े सितारे को जानना, बैठ जाते हैं बैठ के माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप लगा के सेल को भी देखते हैं, बट to understand completely our body, each and every metabolic systems and other systems which is happening, biogeochemical systems in our body is very difficult. But अगर आप वो समझ गए तो बहुत कुछ easy हो जाएगा. कैसे इनको सही ढंग में जो प्रोसेस चल रही है उसको सही ढंग से चलाने के लिए हमको इस पृथ्वी पर क्या क्या किस किस की जरूरत है वो अपने आप ले लोगे. एक गाय होती है, गाय, आई हैव सीन इट बिकॉज इट इज माई एक्सपीरियंस. व्हेन इट, गाय को जब बुखार आता है तो क्या करती है, आपने कभी सोचा है? एक गधा होता है, उसको बुखार आता है तो क्या करता है? तो डॉक्टर के पास नहीं जाता, उनके पास कोई गधे का डॉक्टर, गाय का डॉक्टर नहीं होता. So they have their own system of healing the things, and they know it through some other, the energy which we don't know, how they actually inspire to go at some particular plant and they eat that plant. I have seen it. The diseased cow I observed, and then that she went to a particular plant and she ate that plant और वो ठीक हो जाती है. तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए. हम इतनी बुद्धिशाली, बुद्धिमान व्यक्तित्व है पूरे सृष्टि में, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन हम सोचते ही नहीं है उस ढंग से. तो इतना गहन विज्ञान आप लोग कर रहे हो यहाँ, इतने बुद्धिशाली व्यक्तित्व हर जगह बैठे हैं, लेकिन हमारे हर रोज की लाइफस्टाइल को ही हम भूल जाते हैं. वी जनरली निग्लेक्ट आवर डेली रूटीन, डाइट, लाइफस्टाइल, मॉर्निंग में कैसे कब उठना, क्या खाना, सुबह बैठ के सीधा जलेबी फाफड़ा, हम गुजराती लोग बैठ जा खा लेते हैं. दैट इज नॉट गुड. इवन हियर ऑल्सो रबड़ी, जलेबी, दिस इज ऑल नॉनसेंस for our body. Many things which generally we should not eat in the morning, evening. What should be eat in the evening time, afternoon? Even few 7-8 months back, we had one discussions meeting with Dr. Bharti. I think everybody knows Dr. Bharti came, and he has given you very good teaching about our daily lifestyle and routine, what to diet, what to take into our daily diets, but we generally neglect it. So आज से ये प्रतिज्ञा हम करेंगे after this workshop कि at least out of 20 or 30 teachings which Devish is going to give us, at least one teaching we follow for 1 month, for 1 month. Then automatically it will become a routine. तो आपको अच्छे विचार, अच्छे हैबिट, उसको रूटीन बना देना. कुछ नहीं होगा फिर. मैंने आज उनको बोला था, मैंने कई सालों से मैंने एक टैबलेट नहीं खाई है. हालांकि टैबलेट खाने का बहुत प्रसंग यहाँ आता है, आप लोग ही देते हैं रोज आके या तो लिख के डिस्कशन करके. तो everyday routine we have stress, mind problems, because habits say diabetes, heart disease, so these are very common with the habit. But you have to make such habit every day that I think you can eradicate those diseases. Other than we go and somebody bang you and आपके पैर तोड़ देंगे, तो दिस इज डिफरेंट. उसमें भी हमको पूरा बड़े लेवल पर लोगों की हैबिट बदलनी पड़ेगी. तो हमको योगी जी को बोलना पड़ेगा कि भाई ये जरा
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रोड पे थोड़ी ढंग से की जाए। कुछ कुछ हद तो कर दिया है, लेकिन कुछ बाकी है, तो वहाँ से भी बच जाएंगे हम। तो इससे बचने के लिए यहाँ से लोग चले जाते हैं बाहर, दुबई या यूके, यूएसए, कि वहाँ तो थोड़ी अच्छी लाइफस्टाइल है। एक्सपेक्टेशन ऑफ द लाइफ व्हेन यू गो फ्रॉम द मॉर्निंग आउटसाइड, तो आपका कोई होता ही नहीं है कि आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो भारत देश में ये ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन कम है आने का वापस, दूसरे देश में ज़्यादा है। ये कई सारी बातें हैं, लेकिन आज हम सुनने को बैठे हैं देवेश जी को। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि एटलीस्ट 1 or 2 teachings you take today and just instill inside for 1 month only. I'm not giving you saying that go for 1 year, but at least 1 month. Start it, because I was also very, my lifestyle was also erratic, but since last meeting with Premraj and Jyoti, they taught me that definitely. And from that day I become regular. Otherwise मैं योगा करने में रेगुलर नहीं था। आज किया, दूसरे दिन ब्रेक किया, तीसरे दिन किया, बट करता था, लेकिन फिर रेगुलर हो गया। कि दिस इज़ वेरी एसेंशियल। जब आप समझते हैं कि मुझे अच्छा काम करना है, एक अच्छा पेपर लिखना है, तो अच्छा पेपर ऐसे मुफ्त में नहीं लिखा जाता। पहले आपका बॉडी ठीक करना पड़ेगा। जब आपका बॉडी बैलेंस में है, तभी आपकी सोच भी बैलेंस में होगी, आपके विचार भी अच्छे होंगे। अच्छा खाने से अच्छा विचार भी आता है, और अच्छे विचार आने से ही आपके प्योरिटी के साथ आपका कंसंट्रेशन, इसके साथ आप अलग योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम सब करना चाहिए। उस टाइम मैंने बोला था कि अष्टांग योग हम फॉलो करते हैं जनरली, उस वजह से मैं 8 आयाम को छोड़ दीजिए, 8 आयाम टोटल नहीं करना है, लेकिन पहले 4 आयाम को पकड़ के बैठिए, जिसमें ही हम पूरा समा जाएंगे। सही बात है ना? यम नियम व्यायाम और प्राणायाम, ये पहले 4 ही पकड़िए, बाकी तो प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि वो अभी नहीं है। वो स्पिरिचुअल जब बन जाओगे एक लेवल पे, लेकिन ये पहले 4 आयाम को पकड़ लीजिए, यम नियम व्यायाम और प्राणायाम, तब सही में आप उगर जाओगे और बेस्ट पेपर पब्लिश कर पाओगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपको जानने से ही आप बेस्ट दे पाओगे। किसी को देना भी है, हमको भी लेना है, तो ये पहले ही यम में आ जाता है। आप सत्य अहिंसा का पालन कीजिए, वो यम में आ जाता है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन आज आप इकट्ठे हुए हैं हमारे देवेश जी को सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग आवर साइंटिस्ट टीचिंग। आई मीन proposed, but it will be the best. Thank you, sir, for your nice words. Now it's time to welcome our guest, Mr. Devesh Srivastava, onto the stage. ये सात्विक ताकत कलर है। ये आपको मालूम है, ये ज्योति जी के बेटर हाफ है। बेटर हाफ है। Thank you, sir. I request Devesh to take his chair. It is my pleasure to introduce Mr. Devesh Srivastava to all of you. Mr. Devesh is a certified holistic health coach, yoga instructor, fitness coach and nutritionist. He has completed his MBA in HR at Symbiosis Institute, Pune, served as a personality development trainer at Amity University and several other Lucknow-based management studies. Moved to Bangalore to establish his own startup, Mission of Simplified Health and Fitness. He named it Lifestylers, Building a Better Tomorrow. Completed his yoga certification from Ministry of Ayush. Did a diploma in yoga and health from Fab Academy, USA. Completed nutrition and lifestyle course training from My Health Buddy. Devesh is also a 500-hour registered yoga teacher from Botsville and Ashram, which are reputed institute under Yoga Lens. His areas of expertise include Surya Namaskar, Pranayam, posture correction, immunity boosting, pain relief, stress relief,
lung capacity building, yin yang, kundalini, pilates, force strengthening techniques. Additionally, he specializes in postpartum and prenatal yoga practices also. He specializes in strength training, B+HIIT along with his yoga programs. He is a founder of Live Stylers, Building a Better Tomorrow, where he has dealt with 500 plus clients with chronic diseases and corrected their lifestyle as well. So we are grateful for your presence and look forward to your valuable insights and interaction session. I would like to also mention he is also extended family member of BSLP as well. And I once again thank you all for being here. Let this workshop be a space for learning, reflection and positive transformation. This workshop will be in a podcast manner. I have already collected questions from the BSLP members. I have gathered all of them. And at any time if somebody wants to ask more and interact with Mr. Devesh, they can keep it more of interactive rather than just question and answer type. Let's begin. Request Mr. Devesh to say a few words. Hello. Okay. सबसे पहले like to say a big thank you to the Professor Thakkar sir for giving me this opportunity to sit in front of you. And certainly अभी सर ने बोला सबसे better half, तो मेरी जो better half हैं डॉक्टर ज्योति, I think वो deserve करती हैं a big round of applause from my side sir. I think वो कहावत है कि हर औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, पर हर आदमी के पीछे एक बहुत ही कीमती औरत का हाथ होता है, ज्योति इज देयर. एंड वुड लाइक टू से थैंक यू टू प्रेमराज फॉर डूइंग एवरीथिंग. एंड आई थिंक डॉक्टर निलय इज हियर समवेयर. थैंक यू वेरी मच सर कि मेरी आवाज़ जनता तक पहुंच रही है. और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर ना करूं, आपको समझाऊं, आपको बताऊं कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है. और बस कुछ चीज़ों को फॉलो करिए, आराम से ज़िंदगी जिए. बिकॉज लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल से होती है. और सबसे कमाल की बात है जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो आपके अंदर के सारे ऑर्गन्स जो भगवान ने दिए हैं, वन टाइम डिलीवरी, वो सारे के सारे आपको बनाते हैं, आपकी इमेज को बनाते हैं. और वो इमेज ही आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है. तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाऊँ, आपके दिल तक छूँ. और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर, ऑल द BSLP फैटर्निटी एंड द पीपल ओवर हियर. हमारा कनेक्शन शब्दों के अलावा दिल से दिल का होगा. तो मैं चाहूँगा कि आप दिल खोल के मुझसे क्वेश्चन पूछें, और जितने क्वेश्चन के आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा, पूरा लेवल ट्राई करूँगा कि मैं उसको सिंप्लीफाइड कर पाऊँ, आम भाषा में आपको समझा पाऊँ कि वो कॉम्प्लेक्सिटी, वो ट्रबलसम लाइफ को लीड करने का आसान हो जाए और अपनी लाइफ में आप कामयाब हो जाएं और काबिल हो जाएं. थैंक यू वेरी मच. लेट्स बिगिन द सेशन. देवेश जी, बहुत सारे सवाल आया था BSLP मेंबर से. कुछ बहुत कॉमन थे, कुछ पढ़ के भी ऐसा लग रहा था कि इस पे भी डाउट है क्या, कुछ ऐसे भी थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे. हम सबसे पहला पूछना चाहेंगे जो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में था, जो है पानी, वाटर के बारे में. क्वेश्चन ये था कितना पानी पीना चाहिए दिन में. कुछ कहते हैं कि शुरुआत पानी से करें, 2 लीटर पानी पी लें, इट्स गुड फॉर बाउल मूवमेंट. कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट है कि 1 गिलास पानी पिए, ल्यूकवार्म पानी पिए. और कुछ कहते हैं कि 5 लीटर पानी पिए, कुछ कहते हैं कि 3 लीटर पानी पिए. तो पूरा दिन में कितना पानी पीना चाहिए, सबको क्या 5 लीटर पानी पीना चाहिए, क्या ये इंडिविजुअली वेरी करता है, ये कैसा पता चलेगा कि कितना पानी पीना चाहिए. हेलो. ओके, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पानी को लेके. और पानी कितना इंपॉर्टेंट है एक बैंगलोरियन को पता है, मुझे पता है कि पानी हमारे यहाँ बहुत बढ़ता भी है और पानी की स्कैरिसिटी भी क्या होती है. लेकिन पानी हमारी बॉडी को बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हमारी बॉडी पानी से बनी हुई, तो आपको सबको पता है, आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. अब एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें 4 लीटर पानी पीना चाहिए. मेरी क्लाइंट थी, मुझसे पहली बार मिली, तो उसने मुझे कहा कि सर मैं डायलिसिस पर हूँ. तो मैंने ऐसा क्या हो गया. उसने कहा मैंने पानी पिया सर. तो उनका पानी पीने से डायलिसिस कैसे होगा. उसने कहा किसी ने कहा 4 लीटर पानी पीना है, तो मैंने वो पानी पिया, तो मेरी किडनी को प्रॉब्लम होने लगी और डॉक्टर ने कहा कि यू हैव टू डू द डायलिसिस नाउ. द प्रॉब्लम इज दैट कि पानी कंजम्पशन
आपके वर्क के ऊपर है, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर है, राइट? और कीप ऑन सिपिंग द वाटर इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। एंड द बेस्ट, जो वर्स्ट पार्ट हमारे लिए क्या है कि पानी तो है, लेकिन वर्स्ट क्या है कि हम उसको प्लास्टिक की बॉटल में पीते हैं। देखिए प्लास्टिक इज, चाहे वो कैसी भी प्लास्टिक हो, राइट, वो प्लास्टिक आपके लिए डेंजरस है। अगर वो प्लास्टिक में गर्म खाना हम डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कैंसरस रिलीज करता है, सबको पता है। लेकिन हम अगर पानी पीना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट गल्प द वाटर। If you gulp the water, you also invite the impurities along with you, right? So sip the water, keep on sipping the water whole day. अब उसमें please don't measure the food and the water. क्या आप जिंदगी में सब कुछ मेजर करके करना चाहते हैं? क्या आप प्यार मेजर करके करते हैं? क्या आप अपने बच्चों को मेजर करके प्यार करते हैं? क्या आप मेजर करके जिंदगी चलाते हैं? आप नहीं कर सकते हो। So don't measure things. Just understand your body, how much your body is expecting, right? For example, you really worked hard. For example, बहुत गर्म है. For example, लखनऊ, हम dehydrate हो रहे हैं, तो we need water. But how to? We just keep on sipping the water to get this area wet. इसको dry नहीं रखना, right? Excess of water will collect on the kidney somewhere and might be can damage your kidney as well. So excess of anything is bad. तो मैं आपको किसी लीटर में पानी में बांधना नहीं चाहता हूँ. If you are really working out, आपका stressful workout चल रहा है, ठीक है, उस वर्कआउट में आपका जो सेट आउट हो रहा है, ठीक है, वो डेफिनेटली बहुत टेम्परेचर इतना गर्म हो चुका है कि पानी बाहर निकाल चुका है, पानी बॉडी डिहाइड्रेशन जोन पे जा चुकी है, बॉडी को पानी चाहिए। सो यू स्टार्ट ड्रिंकिंग द वाटर, बट व्हाट द पीपल विल डू, दे स्टार्ट गल्पिंग द वाटर, राइट? तो अगर आप याद करिए, तो छोटे बच्चे थे तो आपको सबसे पहले स्टील के ग्लास में पानी पिलाया गया, सिप करा के। किसी ने मुंह में ऐसे पानी दिया नहीं दिया, राइट? बिकॉज आपका जो डेफिनेटली जो एरिया है जहाँ से पानी जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता है, स्मॉल पाइप इज देयर। So if you sip the water, you keep on understanding and you chew the water. जैसे मैंने कल कहा था कि बांग्ला में कहावत है, I think lots of many Bengalis are here in the class. Oh my God. तो मेरी बांग्ला उतनी अच्छी तो नहीं, वो try to live. जल खाओ, right? तो पानी खाओ, खाना पियो, right? तो reverse कर लेते हैं। तो we have to eat the water and we have to drink the food. To chew the food much it will become watery because पूरी body में कहीं पर कोई grinding machine नहीं है except the teeth, right? So if you chew the food, you understand the food. कि भाई वो खाना बना कैसे, खाना में प्राणा होता है, राइट? वैसे पानी, तो पानी जब आप चबाते हैं तो वो छोटी छोटी मात्रा में आपकी बॉडी में जाता है। कीप ऑन सिपिंग द वाटर, तो आपको मालूम होता है कि मुझे कितना पानी कंज्यूम करना है। व्हेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट वी शुड नॉट ड्रिंक द वाटर। सिंपल, सो सिंपल फैक्टर बाय लिविंग द लाइफ, डोंट मेजर द वाटर। सब कुछ सिंपल करते हैं, राइट? हैव अ स्टील बॉटल 750 ml इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? ग्लास में पोर कर सकते हैं, स्टील की ग्लास लीजिए, उस ग्लास में या कांच के ग्लास ले सकते हैं, कांच एंड स्टील इज गुड। और यू कैन सिप द वाटर, कीप ऑन सिपिंग द वाटर एंड कीप ऑन स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल व्हेन स्पीकिंग राइट नाउ आई जस्ट टेक द वाटर, ओके, एंड आई सिप द वाटर। इससे क्या होगा आपको मालूम है? आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अभी जो मैं बोल रहा था, अगर आप मेरी स्पीड देखेंगे और आपकी स्पीड देखेंगे, कुछ फर्क महसूस होगा, है ना? It happens. The water, मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए कर रहा हूँ। So when you speak nicely, when the word comes nicely, it goes to the other person nicely. ये दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है जिस आवाज़ को आप बोलें। देखिए ध्यान रखिएगा, आपकी आवाज़, आपके लिखे हुए शब्द जो दिमाग से आते हैं वही रह जाएंगे, हम चले जाएंगे, राइट? तो वो शब्दों को सही करने के लिए, बॉडी को आराम देने के लिए, ऑल इज वेल, सब ठीक है, पानी को सिप करना और पानी को चबा के पीना बेटर। थैंक यू। You can clap, thank you. I like the clapping. एक बार clap कर लीजिए सर, thank you very much for your support. अच्छा, एक क्लैपिंग से बड़ी अच्छी थेरेपी है, बाय द वे मैं कराता हूँ सीनियर सिटीजन। वहाँ बताऊँ एक मेरे कपल हैं, 85 years old, हस्बैंड वाइफ, और वाइफ को नी सर्जरी हो चुका है, राइट? आज मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ दे आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद मी एंड दे आर इम्प्रूव्ड। जो नई पेशेंट है 85 years की लेडी है, शी इज़ वॉकिंग एंड रिसेंटली तिरुपति में चढ़ाई करी है, राइट, ऑन लेग्स। और आज सुबह की बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक कपल है, एक मैट, 2 BHK हाउस इन बैंगलोर, एक मैट पे दोनों कपल ने बारी बारी आज वर्कआउट किया है। मेरा लैपटॉप में कनेक्शन नहीं हो पाया बिकॉज मेरे ऑफलाइन क्लाइंट हैं, एंड दे आर सो एक्साइटेड कि मुझे वो वर्कआउट करना है सर, मैं फ़ोन पे कनेक्ट करी करूँगी। तो ये रीज़न है उसके हस्बैंड इसलिए वर्कआउट कर रहे हैं कि उसकी वाइफ ठीक हो जाए। उसके वाइफ को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज उसकी वाइफ ने वर्कआउट किया, उसने वर्कआउट किया, रोज़ ही करते हैं, एंड ये डेवलपमेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड फाइनली उसका रिजल्ट ये हुआ है कि डायबिटिक इज गेटिंग लो, यूरिक एसिड खत्म हो चुका है, काउट फिनिश हो चुका है। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। मैं बातें करते करते आपको बताऊंगा हाउ थिंग्स चेंज इन देयर लाइफ एंड दे आर नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड द मेडिसिन। आई एम नॉट लाइक आफ्टर द लाइफ ऑफ द डॉक्टर्स, बट डॉक्टर्स आर देयर फॉर द लाइफ सेवर्स, लाइफ टेकर्स नहीं, राइट?
So you decide how much you spend money on doctors and medicines and insurance, and how much spend money on your life, right? Thank you very much. अगला सवाल है जो मोस्ट ऑफ अस को अप्लाई भी होता है. एज यू नो वी हैव ए वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल. सुबह उठा, ऑफिस आया, बैठ के लैपटॉप या माइक्रोस्कोप या कोई एनालिटिकल मशीन. इसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल को लेके कैसे डील करना है उसका सवाल है. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये है कि सुबह आते हैं तो बहुत एनर्जेटिक लगता है, अच्छे से काम भी होता है लंच तक. लंच पे खाना खा लिया, कायदे से तो खाना खाने के बाद एनर्जी बढ़ना चाहिए, बट थोड़ा उल्टा, थोड़ा सा आलस लगता है, फिर कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया, 1 घंटा तो कुछ ना कुछ करके या कॉफ़ी पी लिया, चाय पी के बैक पे ट्रैक पे ले आ गया. उल्टा हो रहा है. खाना खाने के बाद एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो रहा है. और शाम की तो बात आप पूछिए, शाम तक तो एनर्जी पूरा ही लो. तो ये क्यों हो रहा है? क्या हम अपने आप को पूरा दिन एनर्जेटिक रख सकते हैं? क्या बीच में कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए? एनर्जी लेवल्स कैसे मेंटेन होगा? एनर्जी लेवल्स आखिर ड्रॉप क्यों होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल. इसके बारे में आप कुछ हमें नॉलेज दे सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर का. आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए ताली बजा दीजिए बैठ. अब आंसर बोलूँगा तो ताली बजाइएगा नहीं. देखिए पानी एग्जैक्टली हम सबको साफ चाहिए. अभी आपने कुछ वीडियो देखा था जब हम लोग का एक प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा था. वी नीड क्लीन वाटर, क्लीन एयर, राइट? और हम सब चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसे कंट्रीब्यूट करते हैं क्लीन करने के लिए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट? और हम जब चीज़ें कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्प कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा पानी और क्लीन हो जाए, राइट? तो हम क्या चीज़ ऐड करने लगते हैं? सोचते हैं कि चलो उस पानी में, जैसे सर ने बोला अभी कि खीरा, राइट? एंड और क्या डालते हैं सर? नींबू डालते हैं. और सॉरी, जी जी जी, हाँ हाँ जी जी जी, हाँ. एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आ गई है वीडियोस, राइट? और ये इतना खतरनाक हो गया है. इंस्टाग्राम जो आपको मालूम है, इंस्टाग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ूँगा. आपने अगर LA के बारे में सुना होगा, लाइक वहाँ पर कैसीनोज बहुत फेमस है, राइट? एंड वेगास लाइक, तो वहाँ पर जो कैसीनोज हैं उसमें इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ, राइट? अगर आप कुछ डालते हैं तो वो ऐसे चलता रहता है, उसमें कुछ जैकपॉट निकलता है, फिर वो चलता रहता है, राइट? वो इन्फिनिटी, वो कभी खत्म नहीं होता. तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के जो रील्स हैं वो भी इन्फिनिटी, राइट? यू कीप ऑन मूविंग योर फिंगर्स, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ फिंगर मूव कर रहे हैं, आंखें मूव कर रहे हैं और बॉडी का हिस्सा को मूव नहीं कर रहा. तो अभी ज्ञान ज़्यादा हो गया है, ठीक है? मैं उसकी बात प्यार करता हूँ. देखिए पानी क्लीन होना हम सबका अधिकार है, राइट? अभी पानी में खीरा डाल दिया, पानी में नींबू डाल दिया, ठीक है? मैं कहता हूँ पानी में आप क्या डालेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी कितना डालेंगे अपने शरीर में वो इम्पोर्टेंट है. अब खीरा को सर खीरे की तरह खाइए, राइट? नींबू को नींबू की तरह खाइए. अगर आपको सच में पानी को अच्छा बनाना है तो भी आप शिकंजी, राइट? 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 अब शिकंजी तो मेरे ख्याल लाने की जरूरत नहीं, सबने बचपन में पियोगे, राइट? सॉफ्ट का पानी पिया है बचपन में, पिया, राइट? बचपन में क्या क्या किया आपने? लेमनेड पिया है बचपन में, याद करिए. जो बचपन में आपने पिया था ना घर पे, जो नानी दादी बनाती थी, ठीक है? वो शरबत है ना, अपने हाँ आम का पन्ना. और बताइए प्लीज, मैं सुनना है मुझे. आई जस्ट वांट टू लिसन. तो बता सकते हैं कौन कौन से शरबत आपने अपने घर में पिए? चिरता का पानी, सॉरी, चिरता भिगो के उसकी पानी सुबह पिया है. ये नानी जी, दादी नानी जो है, जी जी that is a different. जी. That plant is called Sweetenia chirota. अच्छा, ओके. That is a bitter taste. हाँ, agree. Okay, from which beer is prepared. हाँ, जी जी. Those leaves are in fact soaked all night. Okay. And you decant the water हाँ. and take the water from it. ओके. नहीं, मुझे जानना है कि आपकी दादी नानी ने कौन कौन से शरबत आपको पिलाया था? बेल का शरबत, बेल का, वेरी नाइस. गुड़ का शरबत. और बताइए मुझे जानना है. मुझे एक एक्साइटमेंट हो गया, बाहर आ गया. बताइए. लस्सी, ओहो. और बताइए. गन्ने का रस दादी बनाती थी? क्या बात कर रही है? घर में बनता है? गन्ना बना लेती है, मशीन है? अरे वाह, ये एंटरप्रेन्योर है लखनऊ के. आप इनसे संपर्क करें गन्ने के रस. और बताइए एक दो और शरबत. ठंडाई. चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात. और बताइए. याद करिए, छोटे बचपन में जाइए यार, ये कितने बड़े हो गए, बचपन में नहीं जा रहे. जाइए ना, जाइए, सोचिए ना, एक दो और निकल कर आएंगे अभी. कुछ और? किसका? अलसे का, फालसे का शरबत. वो वेरी गुड. और बताइए. अच्छा, ये सारे शरबत जो आपने पिए,
तरबूज का अच्छा शरबत ओके, आपकी शरबत बनाते थे उसका नहीं ओके। सो जो आप ऑथेंटिक शरबत बनाते थे सर, मैं आपकी बात बता रहा हूँ सर, तो उसको पीते थे तो आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन और कामनेस आती थी, है ना? ये सारे के सारे आपने खुद बताए हैं। अब बताइए पानी में डालने की जरूरत ही क्या है खीरा, बिकॉज खीरे में तो खुद ही पानी है, राइट? तो हम खीरे को ऐसे ही खा लेते हैं, राइट? खीरे को खाना जरूरी है, पर हर चीज की मात्रा बैलेंस करना जरूरी है। देखिए मैं आपको कभी ये नहीं कहने वाला हूँ कि ये मत खाइए वो मत खाइए, एवरीथिंग व्हाट इज मेड बाय द गॉड, राइट, वो आपके लिए है। ये बात को समझ लीजिए, बहुत सारी रील्स देख के कंफ्यूज मत होइएगा। व्हाटएवर इज देयर इन द वर्ल्ड मेड बाय द गॉड इज फॉर यू। अब प्रॉब्लम क्या है, उसे कितना खाना है यही समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता नहीं है सर पानी में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बस पानी को साफ करने की जरूरत है। तो जितना साफ हम कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। और जितनी बार हम पानी में कुछ डालते हैं, जैसे आप हमारे गोमती नदी है, जितनी बार आप ऊपर से कुछ डालते हैं तो मुझे लगता है शायद पानी गोमती नदी का यहाँ पर आता है, राइट? हमारे यहाँ लेक्स का पानी आता है सर, तो जितनी बार हमारे लेक्स गंदे होते हैं, पानी गंदा होता है, जो सोर्स गंदा होता है, वही पानी हमारे बच्चे हम पीते हैं और शायद आगे की जनरेशन भी पिएगी। तो क्या हम उसे साफ कर लें तो हमें किसी खीरा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसा कुछ करें, खीरा खाएं, काट के खाएं, आराम से ककड़ी खाएं, खीरा खाएं, नॉर्मल खाते हैं वैसे खाएं। बट एक रिक्वेस्ट है, खाने से पहले खाएं, खाने के साथ मत खाएं, बिकॉज क्या होता है वो ओवर हो जाता है ना। प्रॉब्लम क्या है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, राइट? तो पहले खाने से पहले आपने पानी कंटेंट बना लिया, फिर आपने खाना खाया तो वो बैलेंस हो जाएगा, राइट? ओके, थैंक यू। ओके, सॉरी वी आर डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं। इस पूरे इंडिया में, क्या मैं तो वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक हमारा कैलिफोर्निया का एक क्लाइंट है एंड वी हैव अ प्रॉब्लम। मुझसे हमने एक क्वेश्चन पूछा कि सर बताइए मुझे कि व्हाई ऑलवेज देयर इज अ saying that we should not sit on a chair। तो मैं उनसे बोलता हूँ sitting on a chair is more dangerous than smoking। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे जितनी प्रॉब्लम आपको होती है ये सबको पता है, राइट? आप स्मोकिंग की बात को आगे लेते हैं तो बहुत पहले वो सिगरेट के पैकेट्स अभी तो आ गए हैं, उसके फिगर आई, इमेज आई हुई है जिसमें वो काफ़ी खराब सी इमेज है, और वो टेलीविजन में और सिनेमा थिएटर्स में पहले दिखाते हैं ना, यही है वो संतोष जिसकी जिंदगी धुआं हो चुकी है, राइट? उसको देखने के बाद भी अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। कंपनी का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उन्होंने पूछा कि भाई आप ये डालेंगे फोटो तो क्या होगा, उसने कहा ये डालेंगे तो और सही होगी। वो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में कि जो हमें खराब लगता है वो फैसिनेट हम ज़्यादा हो जाते हैं उससे। तो स्मोकिंग जितनी डेंजरस है उतनी सिटिंग डेंजरस है। अब इस पोजीशन में मैं बैठा हूँ, प्रैक्टिकली आपको बताऊँ कि बहुत डेंजरस पोजीशन है। अगर मैं इस पोजीशन में लगातार 1 घंटे की वजह बैठूंगा ना तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन मेरे पैर में जाना कम कर देगा, वो मेरे हार्ट स्ट्रोक का सिग्नल भी हो सकता है। अगर आप याद करिए, छोटे बचपन में लेके जाता हूँ वापस, राइट? आप कितने मैरिज फंक्शंस में गए थे या कहीं पर गए थे, मंदिरों में जाते थे, लंगर खाने जाते थे, पंजाब की तमिलनाडु में जाइए तो या नॉर्थ इंडिया में बात करिए, पत्ते लाते थे वो पीपल के पत्ते बड़े बड़े, और उसमें हम पलथी मार के क्रॉस क्लिक करके बैठते थे, राइट? याद है? क्रॉस क्लिक करके बैठने से फायदा क्या हुआ, व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग इट विद फिंगर्स हमारा स्टमक दबता था, राइट? विद द ब्रीदिंग एबिलिटी, और हम खाते वक्त बैलेंस थे, राइट? और क्रॉस लेग से हमारी पूरी बॉडी यानी पूरा एरिया अलाइन होता था। हमने क्रॉस लेग करना बंद कर दिया, हमने अंग्रेजों को फॉलो करना शुरू कर दिया। राजा मौली साहब की एक मूवी है RRR, शुरू में देखिएगा उसमें अंग्रेज ने क्या किया हमारे साथ। देखिए आपको बता दूं, वो कैलिफोर्नियन क्लाइंट के पास सबसे बड़ा मकान है, इतना बड़ा मकान है कि आपका शायद आधा BSIP उसमें है एवरेज। बट द प्रॉब्लम इज दैट दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। हस्बैंड वाइफ है, पैसा होता है, लेकिन लाइफ नहीं है। आज उन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने उनको नेगेटिव से पॉजिटिव करने की कोशिश करी। उनको सिर्फ इतना बताया कि सिर्फ इन क्रॉस लेग पोजीशन यू गेन नंबर ऑफ थिंग्स। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, मैं उनसे बोलता हूँ कि शाम के 6 बजे के बाद प्लीज डोंट ईट। तो मुझसे उन्होंने कहा कि सर वो तो ठीक है, यू वॉन्ट ईट आफ्टर 6, बट व्हाट अबाउट आवर वाइन, बिकॉज वी हैव टू ड्रिंक वाइन, राइट? तो मैंने उनसे एक सोच कर एक क्वेश्चन बोला, सॉरी इफ आई हर्ट एनीबॉडी, आई सेड यू हैव टू सेव योर वाइफ एंड वाइन टुगेदर। बिकॉज वाइन आप जो भी आप कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में आफ्टर 6 इट विल बिकम अ पॉइजन, राइट? तो सिटिंग जॉब है 9 to 5, बॉडी स्टेबल पोजीशन में बैठी हुई है, कंजम्पशन है ही नहीं, कंजम्पशन नहीं है इसलिए टमी निकलता जा रहा है। अगर किसी भी इंसान का पेट इतना बड़ा हो गया कि अपने पैरों को नहीं देख सकता खड़ा होकर, या उसके पेट की शेप बड़ी है और पूरी बॉडी पतली है, आपकी बॉडी में प्रोटीन डिफिशिएंसी है, विटामिन D डिफिशिएंसी है, B12 डिफिशिएंसी है। ये सारी डिफिशिएंसी डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा वेलकम वर्ड है आपको कैश करने के लिए। तो जितनी मेहनत से आप पैसे कमा रहे हैं उतनी आसानी से आपके पैसे चले जाएंगे।
राइट? तो ये आपकी लाइफ, और लाइफ भी आपकी बहुत ही एक स्ट्रेसफुल हो जाएगी, आप खुश नहीं रहेंगे। जिंदगी जीनी है, काटनी थोड़ी ना है, हर दिन जिंदगी जीनी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। खुशी के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, सपोज के लिए जब आप विदेश घूमने गए तो एक जैसे पूछा गया कि भाई आप विदेश गए तो क्या क्या देखा आपने? आप तो साइबेरिया, ईरान, इराक, लाइक लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, सर हमने सब जगह गए, हमने एक ही चीज़ देखी, वो है कमोड। हम बाहर निकल ही नहीं पाए सर। सोचिए, जिंदगी जीने के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पेट, राइट? इट शुड बी क्लीन। अगर आपका पेट साफ है तो मन में गुस्सा नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो डायबिटीज भी नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो किसी किस्म की डिफिशियंसी भी नहीं होगी। और स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा, शक्कर से नहीं आया है। जैसे सर ने अभी बताया कि वो पिल्स नहीं लेते हैं, कई बार उनको फोर्स होता है कि पिल्स लें, वो स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस हम सब के साथ है, हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं फॉर नॉट हैविंग अ गुड लाइफ। सिंपल क्या है, एक होती है सडन, बेसिकली मॉर्निंग टू इवनिंग की रिटर्न होती है, राइट? आपने बचपन में सुना होगा, सुबह होता है, सूरज उगा, रात सूरज अस्त हो गया। हम भी वैसे ही हैं, हम सूरज के साथ उठते हैं, राइट? एंड हम वैसे ही जब उठते हैं तो ऊर्जा हमारी बॉडी में आती है, हम खाना खाना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट ईटिंग द फूड, राइट? इन 3 डिफरेंट फेजेस, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है, मेनी पीपल स्किप द ब्रेकफास्ट। उनको लगता है कि ब्रेकफास्ट में क्या है, बट ब्रेकफास्ट में सब कुछ है। एक गाड़ी में फ्यूल चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए, राइट? जो गाड़ियाँ आपने खरीदी होगी, सबसे बड़ी गाड़ी तो ये है ना। और आपको बताता मजे की बात, एक रिसर्च करी गई, एक बॉडी डेथ दिखाया गया, नासा ने उस पर काम भी किया। एक बॉडी जब मर जाती है, हम इंडियंस जानते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर से कुछ ना कुछ निकलता है, पावर, राइट? तो बॉडी से वो आत्मा निकली, उसको रिकॉर्ड किया गया बकायदा। उस आत्मा ने काफ़ी कोशिश करी कि फिगर टाइप की निकली वो आत्मा, कहीं कुछ भी एनर्जी निकली, कोशिश करी कि बॉडी में वापस चली जाए। ही ट्राइड लाइक नंबर ऑफ थिंग्स, बट द बॉडी गॉट टाइट, दांत बंद हो गए थे, हाथ कड़े हो गए थे, वापस नहीं जा पाए। तो शायद आप जिंदगी में अपने घर चेंज कर लें, गाड़ी चेंज कर लें, कपड़े चेंज कर लें, और आई प्रॉमिस यू कैन नॉट चेंज योर बॉडी। तो वॉट एवर बॉडी यू आर हैविंग राइट नाउ, इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट इतना पता है कि इफ यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि हम बैठे ना, हम खड़े फॉर एवरी 15 मिनट्स, ठीक है? थोड़ा सा मूवमेंट करें। कैसे मूवमेंट्स कर सकते हैं? एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है विच आई टेल टू नंबर ऑफ पीपल कि अपने पैरों को स्ट्रेच करिए बैठे बैठे, ठीक है? इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, राइट? अपने नेक को हाथ से क्रॉस हैंड करके इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ठीक है? हाथों को उठाइए, रोटेट करें। अगर आप ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, फिर आप खड़े हुए थोड़ा वॉक करिए। अगर आप हर आधे घंटे में या 1 घंटे की ड्यूरेशन में इसे करते हैं तो your sedentary problem will be resolved somewhere, because sitting is more dangerous than your death, right? तो ये आपको समझना ज़रूरी है। पर बेसिकली वो लाइफ है, मैं समझ सकता हूँ, बट वो थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं आप तो आने वाला वक्त एक ही है। मैं लोगों से बोलता हूँ कि आज नहीं सीखोगे तो कल ICU में जब लेटोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टीज होंगी, बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, पर तुम नहीं होगे वहाँ पर, ICU में तुम होगे। एंड वो ICU में जब तुम होगे, देन यू से वन थिंग टू द गॉड, आज बचा ले भाई। लेकिन वो आज बचाने के लिए भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं। भगवान ये कहते हैं जो तू करेगा वो तुझे मिलेगा। तो वॉट एवर यू डिड फॉर 40 years, हमें वही मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि 40 पे खत्म है, 40 पे लाइफ शुरू भी है। स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि आप बैठे हुए मूवमेंट जरूर करें, एक जगह स्टिल मत हो, स्टिफ मत हो फॉर मेनी आवर्स। मैक्सिमम अपना ड्यूरेशन बनाइए कि हर आधे घंटे में मेरे को उठना है। तो उसके लिए क्या करिए, कीप ऑन सिपिंग द वाटर। सिप करेंगे पानी तो वॉशरूम जाएंगे, वाटर पे से बाद उठेंगे, पानी रिफिल खुद से करिए, चाहे आप कितने बड़े इंसान क्यों ना हो, है ना? और उसको सिप करते रहिए। तो वो मूवमेंट्स आपके दिन भर को एक्टिव रखेगा। सेडेंटरी लाइफ से आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होगी एंड यू फील मोर बेटर, राइट? थैंक यू। Thank you, Deveshi, letting us know to move throughout the day and sip the water to keep the energy levels high. और बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी थे, इस बीमारी के लिए क्या करना चाहिए, उस बीमारी के लिए कौन सी दवा खाना चाहिए। दवा पे तो हम लोग ना ही जाए तो बेहतर है, बेटर कि वो हॉस्पिटल चले जाए और टेस्ट करा लें। तो लाइफस्टाइल के बारे में ही हम लोग अपना डिस्कशन रखते हैं। एक रिपीटेड क्वेश्चन था डेफिशिएंसी के बारे में, जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, उसमें भी एक ही रिपीटिशन थी। हम सुबह 9 बजे ऑफिस आते, 6 बजे वापस चले जाते, तो विटामिन डी की सोर्स कहाँ से ले आया? सवाल में ही आंसर भी है। जितने भी ये सवाल पूछा वो सुबह नहीं उठ रहे हैं,
तो 9 बजे के पहले वो कोई कोशिश नहीं कर रहे विटामिन डी लेने का। उसके बाद इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? इसके साथ साथ मैं एक पर्सनली भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। नींद तो नींद है, कोई बोलता है 6 घंटे का सो जाओ, कोई बोलता है 8 घंटे का सो जाओ। मैं पीएचडी जब करता था 4 बजे सो जाता था, फिर अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो मुझे भी यही लगता है कि 8 घंटे की नींद है तो 2 बजे को सो जाओ, 8 बजे को उठ जाओ, तभी पूरा होता है। बट मेरा फादर कहते हैं कि 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में जगना जरूरी है, इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ बेनिफिट। इस पे आप कुछ बोलिएगा कि नींद कैसा होना चाहिए? क्या कभी भी सो के 8 घंटे 6 घंटे पूरी करना चाहिए? किस उम्र वाले को कितना टाइम सोना चाहिए? उसके बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोना। मुझे लगता है कि हम इंडियंस को 2 चीज़ बहुत पसंद है, सोना और सोना, राइट। सो अभी सोने के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज है कि भाई टाइम नहीं है, सो नहीं पाते हैं। कैसा होगा कि जब हॉस्पिटल में आप लेटे हुए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स बाहर बिल भर रहे हैं और आप सो रहे हैं, राइट। तो कैसा होगा कि आप सच में सोना शुरू करें। अभी सबसे बड़ी चीज़ मालूम है आपकी लाइफ में रिलीफ फैक्टर क्या है? कोई कितना भी बड़ा क्यों ना, कितना छोटा क्यों ना, अगर आप सो सही रहे हैं, फिर हम एक कहावत थी बचपन में कहते हैं घोड़े बेच के सो जाए, राइट। सो अगर आप सो सही रहे हैं तो पैटर्न होता है। अभी सोने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सर्केडियन रिदम के बारे में फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए सूरज से चांद, जो सुबह से शाम का जो सिस्टम है वो बहुत क्लियर है, राइट। सूरज की रोशनी पे हम चलते हैं और सूरज अस्त होता है तो हम भी, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है, इतना लो हो जाता है कि आप कुछ भी खा नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल मैं सर थोड़ा सा मैं आपका एग्जाम्पल लेके इनको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे पात्र काल्पनिक हैं, राइट। तो अभी मान लीजिए सर ने आप सबको एक टास्क दिया मालूम है, राइट, कि भैया इसको शाम तक कंप्लीट करके मेरी टेबल पर मुझे चाहिए। आप सब जुट गए कि चलो भाई आज तो करना है, तो सर की बात है। शाम होने से पहले जो शाम होने का वक्त था, मतलब 4 to 6 की टाइम में सर ने एक और टास्क दिया और कहा कि भाई मुझे कल सुबह मेरी टेबल पर वो टास्क चाहिए। अब लोगों ने कहा भाई ये तो सर ने कहा है, जॉब भी है, चलो करेंगे। आपने जानबूझकर जग कर अपने सारे जो पैरामीटर्स हैं अपनी बॉडी को उनको फोर्सफुली जगा कर वो काम किया। मुझे लगता है जो सुबह से शाम का जो आपने काम किया था वो एज कंपेयर करेंगे शाम की मेहनत काम से तो कहीं गलतियाँ आपको मिलेंगी और शायद आप सही स्टैंड नहीं कर पाएंगे और गिल्टी भी फील आपको, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो प्रॉब्लम ये शुरू होती है यहाँ पर कि जब हम सुबह उठते हैं और एक रिदम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सोना ज़रूरी होता है। अब हर इंसान को सही तरीका पहले समझा देता हूँ क्या है सही तरीका, मतलब वो तरीका जो बचपन में भगवान ने आपको दिया था। आप सोते थे जब छोटे थे, राइट, यू स्लीप वेल, फिर आप फ्रेश होके उठते थे। तो करीबन 7 to 9 आवर्स की स्लीपिंग पैटर्न कही गई है जो कि सही है, राइट, क्योंकि लोगों के पास बहुत से एक्सक्यूजेस हैं फॉर नंबर ऑफ रीजन। पर वो एक्सक्यूजेस क्या बड़े होंगे अगर आप वाकई में अपना ध्यान न रखते हैं और बाद में वो एक्सक्यूजेस आपके लिए एक बहुत रियलिटी बन जाते हैं कि बेड पर लेटे हुए तो उठ ही नहीं सकते, है ना। तो अभी कॉन्सेप्ट ये शुरू होता है कि भाई सोए कैसे। तो सबसे बड़ी बात है आप अपने घर का एक नियम बनाइए, बिकॉज ये अपने लिए नहीं बना रहे, अपनी फैमिली के लिए बना रहे। आप जिंदगी में कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के जा सकते हैं, अपनी फैमिली का एक लेगेसी। मैं एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में एक घर है हौसकास्ट, मेरे ख्याल सबको पता है, बहुत ही अच्छी प्रीमियम सोसाइटी है। मेरा एक फ्रेंड वहाँ का रिपोर्टर है, वहीं से पास हो रहा था। उस घर को करीबन 2500 स्क्वायर फुट का घर दिल्ली में, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी। हमर लेक्सेस जैसी गाड़ियाँ पार्क है, हर आदमी का सपना होता है चलो एक गाड़ी में से परचेज करें। वो घर पूरा अबैंडन हो चुका है, 12 बड़ा अजीब सा हो गया। उसको बड़ा अजीब लगा, उसने क्वेश्चन पूछा बगल वाले घर से कि भाई व्हाट हैपेंड टू दिस हाउस, व्हाई द कार वाज पार्क्ड विद लॉट्स ऑफ उनकी मिट्टी है और घर वाज लाइक दैट। दे सेड कि कोविड नोबडी सर्वाइव्ड। सो नाउ द थिंग हैज कम कि भाई हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्लीप पैटर्न आपको बनाना है तो फैमिली को एक लेगेसी देके जाना है, राइट। वो पैटर्न क्या होना चाहिए कि भाई मुझे टाइम पे सोना है। और सोने के लिए क्या करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट हैविंग थिंग, तो आंखों को, रेटिना को कोई लाइट नहीं चाहिए आफ्टर 8 PM। 8 PM के बाद, अब मेरा एक फ्रेंड काम करता है, वो भी सिग्नल सिस्टम पे जो आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड, राइट, EMF इतना तेज़ हो जाता है कि वो आपकी आंखों नहीं आपके पूरे ब्रेन पे काबू कर सकता है आफ्टर 8, राइट। आजकल आपने क्या देखा है, लोग सो क्यों नहीं पा रहे, बिकॉज दे आर हैविंग अ रील कॉन्सेप्ट, राइट। रात को बेड पे लेट कर वो ऐसे स्क्रॉल करना एक के बाद एक, ठीक है, देखते जाना, बस देखते जाना, मुझसे पूछना क्यों देख रहे हो, बस देखते जाना, कोई लॉजिक नहीं है। वो आंखों को सिग्नल मिल रहा है कि भाई दैट पर्सन वांट टू अभी जगना है उसको।
अब अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स कह रहे हैं इनको सोना है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये होती है भगवान की आवाज़ को मना कर रहा है कि नहीं हम तो देखेंगे भाई, हमें $1 मिलियन देने हैं इंस्टाग्राम के ओनर्स को, राइट। हाँ, इन इंडिया इटसेल्फ जो एक हफ्ते की कमाई है वो $1 ट्रिलियन है इंस्टाग्राम की, बिकॉज ऑफ इंडियंस पीपल। हमें बीमारी हो उसके लिए चलेगा, वी रेडी फॉर दैट, राइट। तो वो जो स्क्रोलिंग आप कर रहे हैं ना, वो आपकी आंखों को सिग्नल मिल रहा है, बॉडी मेलेटन बनाती है, तो वो बना नहीं रही है, बिकॉज उसको लग रहा है भाई जगना है, ठीक है। तो जगने के सिग्नल जब आपने कुछ देखा रात के 8 बजे के बाद, या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड आपके दिमाग में चढ़ रही है, नेट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अब सिग्नल के बाद आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो भी आपने देखा है या तो उसका दिमाग परेशान हो चुका हो, भाई उसने गाड़ी तो मुझसे अच्छी खरीद ली, ये इंसान तो बड़ा फिट लग रहा है, उससे आपका संपर्क नहीं। मैं लोगों से कहता हूँ फेक बुक इज अ फेक बुक, इंस्टाग्राम इज अ स्पा। स्पा समझते हैं ना, जहाँ पर सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं पर होता कुछ नहीं, राइट। तो अभी जो सारी चीज़ें हैं वो झूठी हैं, पर हम उसमें हम इन्वॉल्व हैं। अगर आप उसको बंद कर दें तो आपको एग्जैक्टली 9:45 बजे बेड पे होना पड़ेगा, लाइट बंद करके। याद है आपको जब आप छोटे थे तो नानी दादी मामा मामी के साथ में छत पर लेट के वो तारों से हल बनाना, राइट, वो कहानियाँ जो वो सुनाती थी विक्रम बेताल की, या जो भी आप कहानियाँ सुनते थे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, वो सारी कहानियाँ गायब हो गई। हमने बात करना बंद कर दिया, बेड पे लेट के जो बातें होती थी, राइट, वो ख़त्म हो गई, वो कनेक्शन टूट गया। बस क्या चलता है ऐसे। और वो जो प्रॉब्लम है रात में ना, ये आपको सोने नहीं देती। जब आप बंद करते हैं फ़ोन को तो आंखों में वो असर रहता है और आप करवट बदलते रहते हैं, सो नहीं पाते, राइट। वो बात अलग है कि आपको प्यार हो जाए और करवट बदल, वो समझ में आता है, लेकिन ये तो फिर रोज़ का है, ठीक है। और अब प्रॉब्लम ये है कि सोए आंखें बंद देर हुई तो अब खुलेंगी भी देर से। सूरज निकल चुके हैं, सबसे बड़े ब्रह्मांड के नायक सूर्य, जैसे सर ने बोला कृष्ण का एक सेक्शन, अब वो आ चुके हैं। रिस्पेक्ट पिता की होनी जरूरी है, तो रिस्पेक्ट तो हुई नहीं, क्योंकि हम उठे नहीं, हम सोते रह गए, तो वो रिदम ब्रेक हो गई, स्लीपिंग पैटर्न ब्रेक हो गया, लेट उठे तो डेफिनेटली बीमारियां भी शुरू हो गई। तो अगर आप एग्जैक्टली 9:45 पर बेड पे जाएंगे और आपको नींद नहीं आ रही, तो ऐसे IITs में कहते हैं सिंगल फिनोमेना है, 21 दिन आंखें बंद कर दो और बंद करके सिर्फ अच्छी बातें सोचो कि आज मैंने क्या अच्छा किया और कल मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। नहीं कर सकते तो बातें करो यार, बुक्स पढ़ो। इस दुनिया में स्पिरिचुअल लर्निंग, ठीक है, और अपनी सेहत, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। अगर आप ये कर लेते हैं, यकीन मानिए आप वहां पहुंच जाएंगे, इसकी कल्पना की पराकाष्ठा भी आपने नहीं करी होगी। जस्ट यू कैन इमेजिन व्हेयर यू रीच, राइट। सो यू स्टार्ट रीडिंग, इट्स गुड थिंग बाय द वे, एंड स्टार्ट टेलिंग टू स्टोरी टू योर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि आपके जाने के बाद वो कहानियां तो रह जाएंगी। आप हस्बैंड वाइफ हों या आप फ्रेंड्स हों या फैमिली मेंबर्स हों, सिर्फ वो बातें ही तो रह जाती, फ़ोन पे नहीं। इट्स अ रिक्वेस्ट, आमने सामने। आज भी देखिए मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, तो एक्सप्रेशन काम करते हैं, वो खत्म हो गया ना। अगर आपने बात करके सोए ना, आपको नींद अच्छी आएगी। एंड यू ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी अर्ली इन द मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं कहता नहीं ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट ऑप्शन। बचपन में सिखाया गया था हमें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो भी काम ब्रह्म मुहूर्त में करा जाएगा वो बेस्ट होगा। आपको भी सिखाया गया होगा शायद, राइट। लेकिन हमने वो लर्निंग को वैल्यू नहीं करा। जापान, चाइना, बीजिंग की बात करनी चाहिए, राइट। एक बुद्ध धर्म नाम के एक बहुत बड़े सन्यासी थे। चाइना बहुत बुरी हालत में था, चाइना वाज लाइक समवेयर अबाउट टू फिनिश, राइट। बहुत बड़ी बात है, कोई जाने को तैयार, nobody want to go there in China and treat them. Only one person from Chennai, he planned to go there and teach them something. What happened, you know? He went, he preaches, he teaches. जापान को या आप चाइना को आज भी देखेंगे, चाइना सुपर पावर नेशन कहा जाता है। आज भी उनके यहाँ पर द क्रॉस लेग वज्रासना में वो बैठते हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं। आप कितने बड़े आदमी के पास भी जाएंगे, they used to make you welcome you in the same pattern what the Chinese culture is all about. As a people we are, आप सोच के बताइएगा हम कितने कनेक्टेड हैं। आपने मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह देखिए ना, वो पैटर्न क्या है, वो आज भी वैसे ही है। They make you sit in that particular manner and then they feed you the food. But in the home you're not doing it. Simple my way of saying is that please try to sleep by, because अगर आप नहीं सोते हैं तो जो आपका जो प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, क्या करेंगे ना, देखिए वो होता है BDNF, ओके, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रांसमीटर फैक्टर्स। वो क्या होते हैं, वो बॉडी को रिलीज नहीं होने देते सेरोटोनिन को, डोपामाइन को बॉडी के अंदर। उससे क्या हो सकता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स, न्यूरो स्ट्रोक्स। आप कितने मेहनत करने वाले लोग हैं, अचानक से न्यूरो ट्रांसमीटर्स हिलेंगे एंड माइट बी ब्रेन डिसफंक्शन। जब दुनिया से हम जाते हैं ना,
इस तरीके से जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं लोगों से कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक हाईवे पे लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम गाड़ी चलेंगे, ये हम क्या कहते हैं, चलो भाई आई हैव अ कार नाउ, आई एम सो रिच, आई कैन ड्राइव 120 किलोमीटर पर आवर। अचानक से गाड़ी बैंग होती है, बूम, और आप बाहर निकल कर आपको बड़ा हल्का सा फील होता है। आप पलट के देखते हैं तो आपकी बॉडी पड़ी होती है गाड़ी के अंदर और आपकी सोल बाहर निकल चुकी होती है। आपको मालूम है, इसके बाद आपको इस दुनिया में रहना होता है। जो भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है ना, 80 साल 100 साल 90 साल, वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको वैसे ही चाहिए जैसे उन्होंने आपको पैदा किया। सबको मोक्ष चाहिए, राइट? एवरीबॉडी वांट्स, आई थिंक द अल्टीमेट लग्जरी दैट एवरीबॉडी वांट्स इन द वर्ल्ड इज अ मोक्ष। कैसे मिलेगा भाई? जो दिया है वापस चाहिए, कोई माल फंक्शन नहीं चाहिए, राइट? तो ये सोचिए जो आपको ज़िंदगी मिली है ना, ये रेंट पर है। वी आर लिविंग ऑन रेंट बाय द वे, आई टेल यू। ये बॉडी जो आपको मिली है ना, यू आर सो लकी बिकॉज आई नंबर ऑफ पीपल हु हैव अ वेरी 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 डिजास्टर बॉडी, who slept in the night, wake up with a half paralyzed face. Many people I know, they can't see, they can't listen, they can't do number of things that you do. अभी वक्त आता है कि कैसे हम लाइफ को रखते हैं, because whatever you're doing, same you're getting. अगर हम इतना स्ट्रेस लेके चलते हैं ना कि हमें आगे निकलना है, पर मुझे बताइए आपके प्लानिंग से कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। एक ही काम कर सकते हैं, which is plan our day the way it was was said. जितना न्यूट्रिशन जो बनाया गया था बहुत साल पहले सिस्टर्स ने, हमारा जो खाना डिज़ाइन किया हर स्टेट्स के हिसाब से, हर रिलीजन के हिसाब से, वो पूरा प्लान है, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं चाहिए। मुझे डोसे के अंदर पिज़्ज़ा नहीं ऐड करना है, राइट? वो डोसा है, राइट? खाखरा, जो भी चीज़ें बनी हैं, थेपला, वो वैसे ही डिज़ाइंड है, क्लाइमेटिकली डिज़ाइन है और आपको वैसे ही दिया गया है। पर खाने का जो तरीका है वो आपको डिसाइड करना है। स्लीपिंग पैटर्न को सही करने से आपका खाना भी आपको कंज्यूम होगा बॉडी के अंदर, राइट? और यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू टेक इंश्योरेंस और यू टेक इंक्रीमेंट्स। ठीक है, इंश्योरेंस आपकी ज़िंदगी को सिर्फ ख़त्म करता है, बिकॉज वंस यू आर इंश्योर्ड यू गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स विल टेक मनी फ्रॉम यू, आपको पता ही नहीं है, बिकॉज आपका पैसा मार्केट में लग चुका है, राइट? उससे वो पैसा कमा चुके हैं और आपके इलाज में 20 से 30% ज़्यादा बढ़ाकर आपको कर, हो सकता है आपको पैसा आपके इंस्टीट्यूट रिम्बर्स कर दे, बट व्हाट अबाउट द ऑर्गन्स दैट वाज नॉट देयर विद यू? व्हाट अबाउट द लाइफ? व्हाट अबाउट द एनर्जी? Will you able to live at the age of 60 and 70, sorry, 80, 90s with your family? Can you able to see your child growing up? Can you able to see your child is having a child and you will be there to see their abilities? क्या आप होंगे वहाँ पर? तो वो होना ज़रूरी है सर, और तब वो काम होता है। आपको बताऊँ 2009 के बाद हमने ओलंपिक्स में भी कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वी आर हैविंग अ वेरी वेरी बैक लाइफ। हमारे बॉडी में प्रोटीन डिफिशिएंसी होना या प्रोटीन की खाने को ना खाना, वो एक कॉन्सेप्ट ही, प्रोटीन कुछ नहीं है सर, ये बहुत बड़ा मिथ है अपने आप की प्रोटीन इतना इंटेक करना चाहिए। शायद ही मुझसे पूछेंगे, पहले से मैं डिफाइन कर देता हूँ। प्रोटीन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको अपनी बॉडी में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप काम करते हैं। प्रोटीन इज़ अ बॉडी, जो आपके जो मसल्स होते हैं, वो जैसे बिल्डिंग में ईंटों की ज़रूरत है, वैसे बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन मसल को क्रिएट करता है, बिना मसल के कैसे चलेंगे? देखा होगा आपने ओल्ड एज पीपल गॉट डीजनरेशन इन मसल्स, राइट? अगर मसल्स बॉडी में नहीं होगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा, राइट? और ब्रेन काम नहीं करेगा तो जो भी आप पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं वो कर ही नहीं पाएंगे सर, यू विल बिकम ब्रेनलेस। हमें प्रोटीन चाहिए, कितना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे जब मुझसे फ्रेम पूछेंगे। फिलहाल अभी के लिए स्लीपिंग पैटर्न को मैं इसलिए डिफाइन करना चाहता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू स्लीप और डिम द लाइट, स्विच ऑफ द वाईफाईज एंड फोन्स अपने से दूर रखिए। फोन्स और पानी अपने पास मत रखिए, पानी चंचल करता है माइंड को, और फोन पूरे डिस्ट्रैक्शन। एक साहब आए मेरे पास से कहते हैं कि सर मैंने एक वॉच पहना हुई है, उसमें वो दिखाता है कि स्लीप पैटर्न रीड करना है। अब वॉच बताएगी आपको कब सोना है, कितना सोना है, कितना चलना है। प्रॉब्लम ये है कि उस वॉच में एक लाइट आती है, गौर करिए, ग्रीन कलर की लाइट है, तो आपके नर्व्स में पेनिट्रेशन दे दी है। क्या मैं कहूँ, अगर आपको नर्व कैंसर हो जाए तो अमेरिका ने बहुत पहले एक घड़ी बेचने के लिए एक नया, ये पूरा लूप है, बाय द वे इट्स अ बिग लूप, उसका एक हिस्सा है, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग, यू हैव टू डू इट। तो जितने अनहेल्दी लोग हैं वो आप घड़ी पर नजर आएंगे, सॉरी, क्योंकि वो देखते रहते हैं कि मुझे कितना चला मैं, कितना हुआ मैं। नहीं, यू डिसाइड। ट्रेडमिल पे भागने की जरूरत नहीं है, सिंपल वॉक करना है।
कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, सिंपल वॉक करिए। मुझे पता है मुझे कितना चलना चाहिए, मुझे पता है मुझे कितना खाना चाहिए। सो यू शुड अंडरस्टैंड योर बॉडी वेल कि एक थाली सजी हुई है, उस थाली में मुझे कितना प्रोपोर्शन रखना है, कितना पोर्शन रखना है, वो डिसाइड हमें करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ आपकी नानी दादी की वो जो कहानियाँ हैं ना, जो कॉन्सेप्ट है वही चलेगा, वही सही है और कुछ सही नहीं है। डोंट थिंक अबाउट दिस मानना कि भाई मुझे इतना विटामिन चाहिए, मुझे ये चाहिए। सब कुछ आपके खाने से मिल जाएगा और सबके आपके लाइफस्टाइल को सही करने से मिल जाएगा। ट्राई टू सी दिस कि 9:48 तक हम बेड पे रहें और 10 बजे हम सो जाएं, और आप देखिए कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली आपकी आँख 5 बजे सुबह खुल जाएगी, फिर धीरे धीरे वो 4 बजे हो जाएगी, राइट। वो क्या होगा, आपको पूरे दिन की ताकत देगा। आई वेक अप बाय 3:30 इन द मॉर्निंग, Jyoti wake up early in the morning and we sleep by 10. मेरा लास्ट सेशन खत्म होता है 8. सो हम उस पैटर्न को चला रहे हैं, उसका फर्क ये पड़ता है, वी फील वेरी हैप्पी। और रात को 6 बजे के बाद हम नहीं खाते, हम सिर्फ लिक्विड को प्रेफर करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, राइट। आप नट्स खा सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से विटामिन डेफिशिएंसी जो आपको अंदर है वो खत्म हो सकती है, राइट। इसको खा, और जितना हल्का रहेगा पेट उतनी अच्छी रहेगी नींद, राइट। जितना भारी रहेगा पेट उतना माइंड खराब रहेगा। तो जितना आप ज़्यादा खाएंगे, मेटाबॉलिज्म ऐसे ही लो हो गया, आपने उसको ओवर प्रेशर दे चुका है, वो खाना पचाने में कम से कम उसको 9 घंटे लगेगा, नींद आएगी कैसे? और आप भी गई तो उठेंगे नहीं, पेट बड़ा हो गया, खराटे अलग आने लगेंगी, शेप अलग खराब हो जाएगा। मतलब 40 साल की उम्र में लोग कहेंगे अंकल जी, 60 साल में दादाजी बन जाएंगे। अब ऐसे कई लोग जो 60 साल में आपके सामने खड़े होंगे और आपको लगेगा ही नहीं वो 60 साल की, क्योंकि उनका पैटर्न सही है। तो समझिए आप किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं, ये आपके हाथों में, ठीक। थैंक यू। थैंक यू देवेश जी। एज यू सेड, अगला क्वेश्चन इसी पे है, कई सारे सवाल था डाइट के ऊपर। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक डाइट क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, प्रोटीन कितना खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए, फैट कितना चाहिए, एक हेल्दी डाइट क्या होता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अक्सर मैं भी सोचता हूँ कि बैलेंस रख के खाओ, फिर मैं कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, फिर वो मेजरमेंट वाली जब बात आती है, इतना ग्राम ये खाना है, इतना ग्राम, उसमें ही फ्यूज हो जाता है कि किसमें कितना प्रोटीन है, दाल कितना खा रहे हैं। फिर अल्टीमेटली यही लगता है कि अरे चलो जो 1 कटोरा दाल खा रहे हो वो खा लो, छुट्टी करो। क्या मेजर करके खाने की ज़रूरत है? तो एक सिंपल भाषा में हम सबको आप बता सकते हैं कि खाने में क्या होना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए डाइट कैसा होना चाहिए। देखिए प्रोटीन जो है ना, वैसे मैंने पहले भी इसको रेफर किया था, वो बहुत ज़रूरी है। तो जितनी ग्राम हमारी बॉडी है, जितने केजी की हमारी बॉडी मतलब है, वो उतना ग्राम में प्रोटीन आता है, राइट। सो अगर हम उसे कैलकुलेट ना करें, जो अगर बहुत आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बाय द वे इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी व्हिच एवरीबॉडी कैन डू। जैसे मैंने कहा ना 85 ईयर्स की एक लेडी ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो एक डर है हमारे अंदर बिठा दिया कि भाई हमारी बॉडी बिल्डर्स की तरह हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी लाइफस्टाइल अलग है। आपको वंस अगर आप 3 डेज का स्प्लिट भी करते हैं, 2 डेज का स्प्लिट भी करते हैं, वो काम कर जाएगा। 1 डे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 1 डे होगा, 2 डे होगा, 1 डे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो मैं भी लोगों को देता हूँ। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो डर है कि भाई जिम जाएंगे तो हमारी कमर टूट जाएगी, सर जिम जाएंगे तो कमर बनी रहेगी, ठीक है। अब खाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको खाना ज़रूरी है। तो वो जो प्रोटीन है वो अलग अलग तरह से आपकी बॉडी में जाता है। अब प्रोटीन क्या हो सकता है, सोर्सेज बहुत सारे प्रोटीन के। लोग कहते हैं कि जो लोग एगिटेरियंस हैं वो एग खा सकते हैं, जो लोग वेज हैं तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, राइट। अभी किस तरीके से खाना है वो सिंपल पैटर्न सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सुबह जब होती है सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी में, राइट। तो जो ब्रेकफास्ट होता है वो प्रोटीन के साथ होना चाहिए, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ कब क्या होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए। कार्ब्स नहीं होंगे तो बॉडी में काम नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ नाश्ते बताता हूँ। अगर आप मैं आज यूपी की बात कर लेता हूँ, नॉर्थ में कौन सा नाश्ता बहुत फेमस है सुबह सुबह, कचौड़ी मत बताइएगा, वो जो घर में बनता था बहुत साल पहले, जो पराठा, राइट, और पोहा। अच्छा, और बताइए अपने घर के नाश्ते बताइएगा, अपने जो आपके घर पे चलते हैं, जो जहाँ से आप आते हैं, चने, ओह वेरी गुड। और बताइए चिल्ला। ये सारे जो नाश्ते आपने सुने ना, ये सब में प्रोटीन है पहले, राइट। अभी प्रोटीन का क्लब कैसे कर सकते हैं, अगर आपने चिल्ला बनाया तो बेसन चिल्ला, तो बेसन को मिक्स कर दिया, उसमें चीज़ें मिक्स कर दी, बन गया ना, राइट। सो जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं, अगर आप अपने ऑथेंटिक स्टेट को देखेंगे ना, तो वो नाश्ता एग्जैक्टली सही तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बस उन चीज़ों को मत अप्लाई करिए जिन चीज़ों को हमें ज़बरदस्ती बताया गया है हमारे साथ। फॉर एग्जाम्पल सर ने बताया कि जलेबी भटूरा, तो अगर आपने मान लीजिए सुबह सुबह उठकर शुगर खा ली,
तो क्या होगा, इंसुलिन स्पाइक आउट हो जाएगी। खाली पेट शुगर इंसुलिन स्पाइक करती है और वो आपकी एनर्जी बार बार लॉस में लेके जाएगी। तो कुछ खाने के बाद अब आप शुगर इंटेक लेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका शुगर इंटेक नहीं बढ़ेगा, राइट। खाने में क्या, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने मान लीजिए एक पराठा या थेपला कुछ भी आपने खाया, राइट, और उसके बाद आपने इतना सा मीठा खा लिया, लेकिन मानिए वो आपको, और इतना सा मीठा क्यों खाया आपने, क्यों? क्योंकि देखिए मैं कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं गया था, हमें जिंदगी जीनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सफर करना है, सफर नहीं रहना है, ठीक है। तो बेसिकली वो सफर के लिए मीठा ऐड करिए, उस मीठे को एंजॉय करिए। अगर आपके सामने एक थेपला या पराठा या जो भी आप बता रहे हो या चने रखे जाए तो उसे कैसे खाएंगे आप? उस पूरे खाने को खाने के लिए आपके पास 15 मिनट होने चाहिए। अगर आपके पास ये समय नहीं है ना, सॉरी, आपकी जिंदगी बेकार है। 15 मिनट उसको चबाना है। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। वो खाली पेट फल खाने का कॉन्सेप्ट है, प्लीज लाइक। हाँ सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया, मैं इसको खत्म कर देता हूँ पहले। तो अगर आपने 15 मिनट जो भी नाश्ता आपको प्लेट में आया है, घर का नाश्ता, फिर से मैं कह रहा हूँ, उसमें बाहर की समोसे कचौड़ी नहीं होने चाहिए। कि आप समोसे कचौड़ी, मुझे बताने की जरूरत नहीं हो कितने डेंजरस होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, कि आपका फैटी लीवर और सारी दिक्कतें वहाँ से आती है। तो घर का जो नाश्ता है जो आपके घर में बनता है, फिर से मैं रिपीट कर, क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर्स उसे देख रहे हैं, खासतौर पर आपके बच्चे। आप जब चले जाएंगे तो क्या लेगेसी रह जाएगी भाई? हम जिस स्टेट से आते हैं उसका नाश्ता ही खत्म हो गया। तो वो नाश्ता बनाइए जो आपके स्टेट का है, जो आपके घर का है, ठीक है। और आपको उसको वैसे ही कल्थी मार के आराम से 15 मिनट देना है सर। इसके बाद जो मीठे का टुकड़ा है उसको आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। उस मीठे के टुकड़े में कुछ भी हो सकता है, मैं मना नहीं करता मत खाइए। अब रेगुलरली अगर आप मीठे का टुकड़ा खा रहे हैं और आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वो इंसुलिन आपकी बॉडी में रह जाएगा। कंजम्पशन ज़रूरी है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे सर कि मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन दो चीज़ें होती हैं, राइट। अगर हम कंज्यूम करते चले जाएं तो कुछ बनाए ना तो देश तरक्की नहीं करेगा ना। तो वैसे हमें कंज्यूम करना पड़े, कंज्यूम के लिए वर्कआउट ज़रूरी है। वर्कआउट ऐसा है कुछ जैसे हम सांस लेते हैं, राइट। तो अगर हम सांस लेते हैं, हमारे लिए सांस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोमेंट के लिए आपकी सांस रुकवा दूँ मैं, चलिए एक काम करते हैं, 1 घंटे के लिए सांस रोक देते हैं, क्या रोक सकते हैं? चलिए एक काम, आधे घंटे के लिए सांस रोक देते हैं, चलो सर। नहीं रोक सकते, 15 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी रोक सकते हैं, राइट। 1 मिनट के लिए सर क्या रोक सकते हैं? हाँ, तो वो रोक सकते हैं, बिकॉज उनको प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो रोक सकते हैं। तो रोकने का मतलब क्या है? रोका मतलब हमने अपनी बॉडी को संभाला। फॉर एग्जाम्पल आई इनहेल, ये पावर आएगी आपको सिर्फ एक्सरसाइज करने से, माइंड पूरा शून्य हो जाएगा। तो आप छोड़ेंगे ना तो माइंड पूरा काम हो जाएगा। लेकिन जब ये करा, कैसे हुआ? वर्कआउट से। वर्कआउट आपको इस लायक बनाएगा कि आपकी सांसें आपके कंट्रोल में आना शुरू होंगी। ये कहा गया भगवद गीता के अंदर, सबको तो पता होगा कि प्राणायाम यानी आपकी सांसें, जब आप पैदा हुए थे तो आपको सिर्फ एक चीज़ दी गई, वो आपकी सांसें। और जब आप दुनिया से जाएंगे तो एक ही चीज़ आपसे छीन ली जाएगी, वो आपकी सांसें। कितनी ज़रूरी है ये आप रियलाइज़ कर सकते हैं। अभी आप कितनी बार सांस ले चुके होंगे आपको पता भी नहीं, राइट। अभी जो सांसें हैं वो कितनी प्योर हैं, कितनी अनप्योर है, डिपेंड करता है हमारे खाने के तरीके से, जो हम खाना खाते हैं, राइट। जैसे भी सर ने बोला सुबह सुबह फल, तो फल जो है वो जो फ्रक्टोस यानी शुगर कंटेंट है, लेकिन वो फ्रूट का कंटेंट है, राइट। खाली पेट फल खाना मुझे लगता है एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं, लेकिन बनाना इज अ गुड ऑप्शन। पहली बात तो बनाना को हम प्रोटीन कंटेंट में ले सकते हैं, राइट। अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट भी है और बनाना में पोटेशियम भी पाया जाता है। तो बनाना आप सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं, एक बनाना। लेकिन उस बनाना को खाना कैसा है मालूम सर? जैसे कोई ईटा खाता है, अगर मैं आपको ईटा दूँ और खाने के लिए कहूँ तो आपको बहुत टाइम लगेगा सर, ये तो बड़ा हार्ड है। लेकिन उस बनाने को अगर आपने वैसे खाया ना, प्रॉमिस कि आपका टमी फ्लैट हो जाएगा और आपके चेहरे में वो बनाना आ जाएगा। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। और उससे आपको फायदा क्या होगा? आपकी मसल में वो इनपुट देना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस बनाना को खाने के बाद अगला काम क्या करेंगे सर? रोटी खाएंगे? नहीं, वर्कआउट करेंगे। अगर आपने वर्कआउट कर दिया, किसी भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट, पिलाटेस हो गया जो मैंने मेंशन करा, हिट हो गया, ठीक, जो आपको अच्छा लगता है, योगा हो गया, राइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, अगर आप वो करते हैं तो यकीन मानिए बनाना कंज्यूम भी होगा, आपकी बॉडी को फ्लैट रखेगा, मतलब आपके पेट को फ्लैट रखेगा, आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा और आपको नींद अच्छी आएगी सर। आप मेरी बात में मानिए और एक दिन आप सिर्फ एक दिन एक काम करिए, एक डंबल उठाइए, चाहे वो 1 kg में बनाओ, ठीक है, और उसको सिर्फ कुछ रोटेशंस करिए, ऐसे इनहेल और सांसों के साथ करिए, सिर्फ एक दिन करिए, राइट। उसी दिन आप देखेंगे कि रात में आपको नींद इतनी अच्छी आएगी, कुछ भी हो जाएगा दुनिया में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हकीकत यही है कि आपको
नींद अच्छी आएगी, बिकॉज यू रियली वर्कड आउट। तो जो खाना आप खाएंगे ना, उससे आपको खाना खाने की भूख बढ़ेगी और आप खाने को समझेंगे, वैल्यू करेंगे, बिकॉज आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप खाना, आपका लंच टाइम आ जाएगा, तो लंच में डेफिनेटली आपका जो प्रोटीन इंटेक, बिकॉज आपने इतना कंज्यूम किया होगा प्रोटीन कि आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए प्रोटीन इंटेक पे ध्यान रखेंगे। तो प्रोटीन क्लब है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, हेल्दी फैट्स भी होते हैं। हेल्दी फैट्स में आपके नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, सब्जा सीड सुना होगा आपने, सब्जा सीड, राइट। तो ये सारी चीजें हैं तो दुनिया में, लेकिन हम खाते जा रहे हैं। तो अकुमुलेट कहाँ हो रही है? अब किसी की अगर वेस्ट लाइन बढ़ी हुई है तो समझ लीजिए वो बंदा बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। हमें अपना वेट लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना है। तो जो वेइंग मशीन आपके घर पे है ना, कृपया उसको हटा दीजिए। BMI कैलकुलेट करने के लिए, बॉडी मास इंडेक्स करने के लिए हम कभी कभी वेट लेते हैं, पर आप मत लीजिए, आप कमर ना पिए। याद करिए, और मैं बताता हूँ, ये जो मैंने ट्राउजर पहना हुआ है, ये मेरी शादी का ट्राउजर, तो अभी भी फिट होता है, ठीक है। तो अगर आपकी कमर नहीं बढ़ रही है तो आपकी वेल्थ जरूर बढ़ेगी सर, क्योंकि उस वेल्थ को एंजॉय करने के लिए आप भी तो होंगे, ठीक है। और कमर को नापना जरूरी, तो मेजर योर कमर, सीक्रेटली कहीं रख दीजिए, किसी को मत बताइए, एंड स्टार्ट योर वर्कआउट सेशन एंड स्टार्ट हैविंग गुड पैटर्न कि 9:48 पे अपन सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, आंखें ऑटोमेटिकली खुलेंगी, आप देख के देखिए, और ये फोन हटा दीजिए, क्योंकि कब तब फोन पे आप होंगे, आपको लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आपको लोग सुन रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम के रील्स में आप नहीं देख रहे होंगे उसको, राइट। एक बहुत सिंपल सी लाइन है, सेलिब्रिटी का मतलब जानते हैं क्या होता है? सेलिब्रिटी को सुना हो ना आपने, यू जस्ट लव द पीपल हु आर सेलिब्रिटी, राइट। कि एक जनाब थे मेरे, जहाँ मैं रहता हूँ अपार्टमेंट में, तो क्रिकेट मैच, हम तो क्रिकेट मैच के लिए कितने दीवाने हैं, तो मैच चल रहा था, और जब वो लिफ्ट में हम और वो इकट्ठा हुए, तो पहले उनका पेट आया, फिर बियर की कैन। तो उन्होंने सोचा, भाई साहब आज कहाँ का प्रोग्राम है? तो वो कोहली खेल रहा है। मैंने कहा सर वो तो खेलेगा, 40 करोड़ रुपए कमाता है सर पर मैच पे। कहते हाँ कमाता तो है। तो मैंने कहा सर आज फिर क्या होगा? आज बियर होगा, इंडिया जीतेगी। मैंने इंडिया तो हर बार जीतेगी, इंडिया को तो जीतना ही है, आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीते वाला वर्ड है ना, जीते रहो। तो भाई साहब कॉन्सेप्ट ये है कि 40 करोड़ इसलिए कमाता है because he start taking care of himself spiritually, learning and discipline. बात समझ में क्या कहना चाहता हूँ? सर तो जो भी कुछ आपने बनाया है, क्या उसके लिए है? सबसे बड़ी बात आपने बोला क्या बनाया है? अपनी फैमिली, वो सब छोड़ दीजिए, मटेरियल्स इज ओके। क्या आप उन फैमिली मेंबर्स के लिए हैं? क्या आप दिख रहे हैं? जब मैं 60 साल के इंसान की बात कर रहा हूँ, तो जैसे 60 साल का इंसान जिसकी बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि यार वो तो है। तो मैं रिवर्स एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 40 का हूँ तो 40 का लगूंगा, लेकिन मैं ऐसा लगूंगा कि मैं 40 वालों को टक्कर दे सकता हूँ। उसका इंप्रेशन, उसका तरीका अलग ही होता है, वो लाइफ ही अलग होती है। एक बार जी को देखिए, शुरू तो करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना माइंड को ट्रेन करना। जैसे आप एक पेपर को लिखते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट काम आप करते हैं, आप पूरी दुनिया में चाहते हैं, आप कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो आपको याद कैसे रखेंगे यार? वो इंसान ना पहले क्या, वो ऐसी शेप में आता है। जिस दिन आप अपनी फिजिक पे काम करते हैं, अपने खाने पे काम करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं, जब आप इंटर करते हैं यार ये आदमी ऐसे आप भले मेरी बातों को भूल जाए पर मुझे नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी। तो पर्सनैलिटी मैटर्स लॉट, यकीन मानिए। इसीलिए मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम आप बहुत काबिल हैं, आपने बहुत कुछ हासिल करा है ज़िंदगी में, लेकिन एक बार मेरी बात मानिए, अगर आपने ज़िंदगी हासिल कर ली ना, तो ये बेस्ट पर्सन है आपकी फैमिली के लिए, आपके छोटे बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए, बिकॉज वो आपको हर पल ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम अब चाहते हैं ना हम करप्टेड ना हो, इंडिया बहुत खूबसूरत, पंजाबी सर ने बोला था हमें LA या लॉस वेगास या बहुत सारे देश, हमारे देश के कैलिफोर्निया। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर हम खुद फिट हो गए, हमारे देश में करप्शन नहीं रहेगा। वी आर अनफिट, वी आर स्ट्रेस्ड, शायद यही रीज़न है कि हम लड़ते रहते हैं, हम इन्वॉल्व रहते हैं। भगवद गीता के चैप्टर की हर पंक्ति में मेंशन करा है श्री कृष्ण, बार बार अर्जुन से कहते हैं तुम सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? अर्जुन कहते हैं हाँ, फिर भी पूछते हैं सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? क्योंकि उनको मालूम होता है कि तुम मुंडी खिलाओगे फिर समझोगे नहीं, तो खाने दीजिए, चलने दीजिए, करके देखिए। वो सारा अर्जुन के सामने वो निगेटिव फैक्टर क्या था, वो सारे लोग है ना, आपके लिए वो निगेटिव फैक्टर, आपके दुश्मन कहीं नहीं है दुनिया में। शीशे के सामने अपने आप को देखिएगा, सबसे बड़ा दुश्मन नजर आएगा और सबसे बड़ा दोस्त। यू आर द पर्सन हु बिकम द हिस्ट्री और अ मिस्ट्री, यू डिसाइड। ओके, थैंक यू।
बहुत सारे सवालों का आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया, उसमें से कुछ ये सवाल भी थे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इस उम्र तक लोगों को करना चाहिए, तो ऑलरेडी आपने बता दिया 83 ईयर्स ओल्ड भी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता सकते हैं किस उम्र वाले को कितना दिन स्ट्रेंथ करना चाहिए? जब मेरी बेटी पैदा हुई, आपके बच्चे अब याद करेंगे, मुझे रिलेट करेंगे, राइट? जो आपके बच्चे पैदा, अगर नहीं किसी के बच्चे पैदा हुए, भगवान के पिता से आपके बच्चे पैदा हुए, राइट? तो जब बच्चे पैदा होते हैं हॉस्पिटल में, आपने शायद रियलाइज करिए वो दिन जब आपने पहले बार अपने बच्चे को अपने हाथ में लिया था, राइट? आपने क्या सोचा था, यार ये बच्चा हेल्दी होना चाहिए। डॉक्टर कहता है भाई साहब ये इतने किलो का बच्चा है, आपने वाह, डॉक्टर ने कहा अंडरवेट, अरे है ना? हम सबको चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। आज भी यकीन मानिए, आप सब बैठे होंगे तो आपके बच्चे कहीं पर भी होंगे, आप कहोगे भाई यार ठीक तो हो ना, तुमने क्या पढ़ा है, क्या करा, वो अलग बात, पहले तुम ठीक तो हो ना? कोविड के समय लोगों ने यही पूछा लोगों से, जिंदा तो हो? हाँ जिंदा है। तो अभी कॉन्सेप्ट ये आता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो हम बचपन से कर रहे हैं। याद करिए छोटे में स्कूल गए थे, बैग लिया था कंधे पे, उसमें कितनी सारी किताबें थी ना, और ऐसे करके जाते थे, है ना? पीठ गोल हो गई थी इसकी वजह से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो शुरू हो चुकी थी, अभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रही है। आपके मालूम नहीं, जब गाड़ी चलाते स्कूटर कार है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सर, बिकॉज आप इतना प्रेशर। अच्छा उसके बाद कार ड्राइव करने के बाद कई लोग कहते हैं सर मेरा पैर जाम हो जाता है। स्कूटर चलाने के बाद टेनिस एल्बो हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि सच में हम भूल गए हैं कि हम वेट लिफ्टिंग करते थे। एक जनाब 10 किलो का आटा उठाते हैं अपनी फैमिली के लिए और उनको शोल्डर नीचे हो जाता है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आप जिंदगी भर कर सकते हैं, जब तक आपकी डेथ ना हो जाए, जब तक आप इस दुनिया से ना जा पाए। बाईपास सर्जरीज, राइट, क्रोनिक डिसीजेज बहुत सारी हो गई, और हॉस्पिटल जाते होंगे, आसान है, सस्ती है, चलिए आपके पैसे खर्च भी हो जाते हैं। तो जब बॉडी आप टूटी फूटी लेके बाहर आते हैं और पेस मेकर लेकर आते हैं। महमूद साहब एक्टर थे, महमूद आपने सुना होगा, बॉलीवुड एक्टिंग करते थे। तो जब वो करीबन 50 साल के आसपास हुए उस समय, उनको हार्ट अटैक आया, एडमिट हुए, डॉक्टर ने कहा बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उनके जो बेटे हैं लकी अली, वो बैंगलोर में रहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, माय फादर वाज अ कॉमेडियन, एक्सट्रीमली कमाल के एक्टर, कमाल का उनका एक क्राफ्ट था। 50 साल की उम्र में वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे उठा लो, कि मैं पेस मेकर लेके नहीं चल सकता। कि वो बड़ा एग्जाम्पल था उनके लिए, तब से उनके बच्चे अलर्ट हो गए। अब आपकी जिंदगी आपके हाथों में, आपकी जो जमा पूंजी है वो 50 साल की उम्र में क्या लेके चलेगी, आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये सब डिसाइड करता है आपके आज के खाने के ऊपर। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि एक कोशिश करिए, देखिए अपने लिए नहीं, अपने उस बच्चे के लिए जिसको आपने सबसे पहले गोद में उठाया था। वो आपको हर पल ऑब्जर्व कर रहा है, और आप जब फिट होते हैं, और आप जब फिट होते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ये मैं बता सकता हूँ बच्चे होकर भी, जब पेरेंट्स सर्वाइव करते हैं और जब पेरेंट्स की खबर आती है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो बच्चे टूट जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। उन्हीं के बच्चों को आप देखेंगे बहुत अच्छा करते हुए, जिनके पेरेंट्स अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा डिसिप्लिन बना के चलते हैं। बीइंग अ पेरेंट यू आर अ गॉड, एंड इफ यू आर नॉट अ पेरेंट यू विल बिकम अ पेरेंट वन डे, एंड इफ यू विल बिकम अ पेरेंट वन डे द हैबिट्स नेवर कम इजीली, यू हैव टू मेक इट। हैबिट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको अलग कर देती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, बदकिस्मती है। हम सब सोचते हैं कि भाई हम कार से आएंगे, हमने सड़क में पाथवेज बनाए नहीं, हमने वॉकिंग सेक्टर्स बनाए नहीं, हमने सोचा कि भाई हम सब कार लेके चलेंगे तो भाई पोल्यूशन तो बढ़ेगा ना। उनके देश में एक प्रेसिडेंट भी होगा तो वो भी कभी भी साइकिल से चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लैक तो करते हैं, उतना तो मैं आपको करने के लिए नहीं बोलूँगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को सिस्टमेटिक कर सकते हैं। तो आप में और शायद कोहली में कोई डिफरेंस कम हो जाएगा। वो 40 करोड़ में है तो कम से कम कुछ करोड़ों में आप ही आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेश जी। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बट मुझे अभी लग रहा है कि एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद कई सारी झिझक भी रहे होंगे यहाँ पे पूछने के लिए। घबराइए ना, मेरी शक्ल डायनासोर की तरह है, लेकिन मैं हूँ नहीं, और डायनासोर बहुत साल पहले चले गए थे। घबरा, एक बात बड़ी सिंपल बात है, हम हेजिटेंट बहुत हैं, हम डरते बहुत हैं। हमें लगता है कि यार हम क्या, सर जिस शहर में आप बैठे हैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान सेतु, राइट, और सबसे कलयुग के राजा हनुमान जी साक्षात हैं। डरते किस बात के लिए, क्या गलत किया है सर, और गलत किया भी है तो क्यों गलत किया, और सोचना ही नहीं आप, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर आई एम फाइटिंग विद एनीबॉडी, आई एम फाइटिंग फॉर माई सेल्फ।
अगर मैं किसी को अब्यूज भी कर रहा हूँ तो अपने आप खुद ही को अब्यूज कर रहा हूँ। ये सिंपल फिनोमेना है, एक सिंपल लाइन है लिखी हुई है, वो मेंशन है कि जब भी हम किसी को अब्यूज करते हैं तो उसके अच्छे कर्म, ठीक है, उसके साथ रहते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी उसको मिल जाते हैं। तो वाई वी आर अब्यूजिंग बाय द वे, देयर इज नो एनिमी इन द वर्ल्ड, आई टेल यू वन थिंग, देयर इज नो एनिमी इन द वर्ल्ड, कोई है ही नहीं आपका दुश्मन। एक ही दुश्मन है जो मैंने आपसे बोला ना, डरिए मत, कुछ मत डरिए, जो आपके मन में है बोलिए, अगर आपको बोलने का मन है। और ये समझिए कि आपकी आइडेंटिटी आप ही के हाथों में है। आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो वैसे रख सकते हैं, चाहें तो गायब हो सकते हैं, लेकिन जो भी आप करेंगे उसका डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी जिंदगी में मिलेगा। तो जो क्वेश्चन आपके मन में हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूछिए, यहाँ ये बात करिए, एंड हो सकता है हम सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू। शुरुआत करते हैं। Which one is better, tea or coffee? Because most of us like that. सर बड़ी अच्छी कहानी है इसमें। हम जब गुलाम थे तो अंग्रेज आए हमारे देश में, सुना होगा आपने, उससे पहले हम बहुत काबिल थे। आई थिंक नरसिम्हा रेड्डी वाज अ पर्सन फ्रॉम द आंध्र स्टेट, अंडर वाटर योगा फॉर 10 आवर्स। एक लेडी थी जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, आप बताएंगे, और उनके हाथ में पीछे बच्चा बंधा हुआ, फाइटिंग किलिंग लॉट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। एक ब्रिटिशर की मजाल नहीं थी हमारे देश के अंदर घुसे, वो थे हम। ऐसे बहुत नाको नाम है। फिर हम गिर गए, अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया और अंग्रेजों ने कहा यार ये क्या है, टी प्लांटेशन। हम पहले पान की तरह खाते थे उसको, पान खाते हैं वैसे नहीं, कथा चूना मिला के एक नॉर्मल तम्बाकू तो पान इज हेल्दी फॉर यू, राइट? तो वैसे ही खाते। अंग्रेजों ने कहा ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाए? तो उन्होंने कहा यार हमसे हिंदुस्तानियों से अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं। एंड दे हैव गिवन अस, दे मेक अ फ्री टी स्ट्रक्चर, चाय बनाई उन्होंने और हमको पिलाई। हमने फ्री तो यू नो वी लव द फ्री थिंग, राइट? एंड वी स्टार्ट ड्रिंकिंग टी लाइक एनीथिंग। खाली पेट चाय, खाली पेट कॉफी उतनी ही डेंजरस जितना आप अपनी बॉडी में एसिड डालेंगे। अब हम करने लगे, चाय पीने के बाद हमारा फ्रेश मूड होता है। नहीं सर, चाय पीने से फ्रेश कैसे हो सकते हैं आप? आपको सिंपल अगर एक गुनगुना पानी तांबे के ग्लास में आप रखें रात में, उसको और गर्म करके उसको पिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन वी हैव एन हैबिट कि हमें सुबह सुबह हो चाहिए कॉफी, मतलब कैफीन। अगर ड्रग्स इतनी बुरी है जो आपको नहीं लेनी चाहिए, तो चाय कॉफी भी उतनी बुरी है, वो भी ड्रग्स ही है, राइट? तो आप सुबह सुबह अपनी बॉडी में चाय एंड कॉफी डालते हैं, वो डेंजरस है। तो खाना खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद आप चाय एंड कॉफी का इतना सेवन कर सकते हैं, आई रिपीट दिस मच ऑफ चाय एंड कॉफी। लेकिन अगर आप चाय कॉफी को छोड़कर ग्रीन टी पे आ जाएं या गुनगुने पानी पे आ जाएं, इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी आपने किसी ने पूछा भी था पानी साफ, तो वही पानी सर, जिस दिन आपने चाय की पत्ती को डबल खुला दिया वैसे वो डेंजरस हो चुकी है। प्लस सबसे बड़ी बात है कि चाय की पत्ती तो है ही नहीं इंडिया के पास, हम तो डस्ट पीते हैं। आपका चाय की पत्ती अगर देखिए, कभी जाके देखिए कि चाय की पत्ती होती कैसे है, उसको कभी उबाला ही नहीं जाता है, राइट? उसको इतना ज़्यादा बॉईल नहीं करा जाता। तो जो बॉईल आप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में एसिडिक एसिड क्रिएट कर रही है। गया सर, लीवर गैल ब्लैडर सर, तो प्रॉब्लम है। तो चाय कॉफी मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे बिग नो नो, पर आप पीना चाहते हैं वंस इन अ डे चलेगा, लेकिन कुछ खाने के बाद, कुछ खाने से पहले आपने पिया तो उसका रिवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी में आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। गैस्ट्रिक इश्यूज, गैस्ट्रिक कैंसर्स। अभी हमारे पास एक जने आए थे, वो करीबन 15 दिन मेरे पास आए, रोज भी मेरे घर में बैठ के, इज अ जीएम इन द कंपनी, आईटी कंपनी इन बैंगलोर। उसे कहते हैं सर यू टेक 1 लाख रुपीज, मुझे कुछ करिए, ठीक कर दीजिए। अब उन्होंने क्या हुआ था, उन्हें कॉलन कैंसर हुआ। कॉलन कैंसर आजकल इतना नॉर्मल है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी बॉडी में हो गया। वो क्या करता है, ऑर्गन्स बंद करना शुरू करता है, 1 by 1। डॉक्टर्स कहते हैं 2 साल आपके पास है, देन यू कोलैप्स। मैंने उनसे कहा कि सर आपने 40 साल क्या किया? तो कहते सर बस वही किया जो दुनिया के लोग करते हैं, खूब सारा लिकर कंजम्पशन, स्मोकिंग, फिर खाने का रूटीन नहीं, स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं। 40 साल, तो अभी ना 40 साल की लाइफ दी भगवान ने आपको। अब 40 साल के बाद आप चाहें तो रिपेयर फंक्शन कर सकते हैं, 40 साल में या 50 साल में। 60 साल के बाद बहुत मुश्किल है, मेंटेनेंस चलेगा। लेकिन अगर आप जाग गए, जब जागो तब सवेरा, तो शायद बच जाए। मुश्किल है आज की दुनिया में बचना, कोविड ने सिखा दिया ना, अभी कुछ और भी होगा। 2030 में जब हम पहुँचेंगे 2030 तक, इज ओनली 1 luxury that we have is health. Nobody is after the big cars, the big houses, the big mansions. Nothing we want. We simply want एक फटी शर्ट के अंदर एक बेस्ट बॉडी अगर है, वो लग्जरी हो जाएगा सर। Because after that you will spend thousands of money, whatever, you won't get a right body.
और वो इतना एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है मेडिसिन के अंदर कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये होगा इंडिया में 2030 में। 25 to 30 you see a drastic change in the body. So लग्जरी है सिर्फ आपकी हेल्थ, वही एग्जैक्ट लग्जरी है, वही इसलिए आप हैं। अगर आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि हम फीलिंग स्लीपी, बॉडी में डिफिशिएंसी शुरू हो चुकी है। बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू कर चुकी है, जाग जाओ, ना इन डेंजरस कंडीशन में, बिकॉज आप सो नहीं सकते अगर आप जवान हैं तो सुबह के टाइम, ठीक है। आप जितनी यॉर्निंग नहीं कर सकते, वो हो रहा है, इसका मतलब वो सिग्नल है आपकी बॉडी में कि भाई यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी सीरियस सिम्टम्स इन बॉडी। डेफिशिएंसीज इन विटामिन ए से लेकर के तक जो मुझसे अभी शायद पूछा नहीं, और सारी डेफिशिएंसीज का एक ही सोल्यूशन आप खाना, योगर्ट में है, नट सीड्स में है, सेसमे सीड में है, वो सारी चीज़ें आई थिंक एज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसे कंज्यूम करिए समय के अनुसार। ब्रेकफास्ट में वो होना चाहिए, लंच में वो होना चाहिए, डिनर तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, राइट। डिनर में अमाइनो एसिड कहाँ मिलते हैं आपको मालूम है? दाल चावल में। कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कई लोग कहते हैं मैं सैलड खाता हूँ, ये खाता हूँ, नहीं चाहिए सैलड। हमें अमाइनो एसिड चाहिए है दाल चावल, सिंपल दाल चावल आप लीजिए, खिचड़ी लीजिए, लाइक कर्ड राइस ले लीजिए, रसम राइस ले लीजिए, व्हाटएवर इज लाइक लाइटेस्ट फूड, ईट लाइक बेगर एंड यू सी द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये जॉर्निंग हो रही है, जो नींद आ रही है, वो होगी नहीं। इसीलिए हो रही है बिकॉज यू हैड अ ग्रेट फूड इन द नाइट टाइम, मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर पा रहा, वही वाली बात, आपके बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया, पेट संभाल नहीं पा रहा, पेट ने हैंड्स अप कर दिया, आंखें बंद हो गई हैं। अब क्या होगा? सुबह के टाइम जब ये शाम तक क्या होगा? और हालत खराब हो जाएगी, देन क्रेविंग शुरू हो जाएगी, इंसुलिन स्पाइक आउट हो रहा है, इसलिए नींद आ रही है, शुगर लेवल बढ़ा। अभी चेक करा जाएगा तो मैक्सिमम लोगों में डायबिटीज पाई जाएगी, प्री या पोस्ट, राइट। ये इसीलिए हो रहा है। और अगर आप इसको काम खत्म करना चाहते हैं तो आई सिंपल, इसका सिंपल है कि स्टार्ट ईटिंग लेसर इन द नाइट, अर्ली इन द नाइट बाय 6 इज राइट। अगर फिर कहते हैं 6 भाई मुश्किल है, से मुझे बैंगलोर के लोग कहते हैं 6 बजे कैसे सर, हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं। 6 बजे शुरुआत करेंगे, 8 बजे अंत कर देंगे। 8 बजे के बाद अगर किचन खुला है, खाना खाएंगे। और सबसे खराब चीज़ जो हमारे यंगस्टर्स कहते हैं, स्विगी एंड जोमेटोज। स्विगी वाले ने, जोमेटो वाले ने बहुत पैसा कमाया इंडिया से। वो करते क्या है, एक प्लास्टिक जो खराब सी प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक तो वैसे ही खराब होती है चाहे वो अच्छी हो कितनी भी अच्छी हो, उसमें वो खाना डालते हैं, आइदर वो ठंडा हो या गर्म हो। उस खाने को आप जब तक खाते हैं आपकी बॉडी में कैंसर तो आ चुका हो। और स्विगी जोमेटो का खाना वैसे भी फ्रीज होता है, खाना जब तक फ्रेश ना बना हो, आग में ना प्राणा उसके आए हो, खाने की कोई वैल्यू नहीं। अगर खा लिया, पेट में गया। अभी मैंने कल शायद बात की थी, नीले ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई मुझे प्रोसेस फूड जंक, तो मैंने से पूछा जंक को कहते क्या है, क्या है वर्ड? तो कई लोग कहते हैं हमें जंक फूड पसंद है। कितने लोगों को जंक फूड पसंद है? जो है यस, चलिए जंक फूड नाम सुना होगा। जंक है क्या? व्हाट इज जंक? इसका मतलब क्या है जंक का? हाँ, जंक का हिंदी मतलब बताइए। कबाड़। हाँ, वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए इनके लिए भाई प्लीज, ताली ऐसे जोर से बजाइए, ऐसे कैसे इनको सब देखते हैं। और से करिए ना, ताली बजाना शुरू कर दो, पहले ऐसे करिए, करिए, सब लोग करिए, अब ऐसे करिए, अब जब ऐसे करिए, और कैसे करिए, और तेज, 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 पूरी एनर्जी बॉडी में आ जाए। ठीक है, इसे बेसिकली इसको मुद्रा कहते हैं, आप जो भी करते हैं। अभी एग्जैक्टली जो कबाड़ आप कह रहे हैं, ये कबाड़ अपनी बॉडी में, अगर आपसे कहूँ कि लखनऊ में थोड़ा सा कबाड़ आपकी प्लेट में दे दिया जाए रोज, तो आप उसे खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, तो ये कबाड़ी तो है जो आप खा रहे हैं। जो कबाड़ आपकी बॉडी में जा रहा है, कहाँ इकट्ठा हो रहा है? सेरोटोनिन, डोपामाइन रिलीज नहीं कर रहा, माइंड काम नहीं कर रहा, ठीक है, आपका ब्रेन फंक्शन खत्म हो चुका है, बॉडी जा चुकी है। डॉक्टर्स के लिए तो एक बहुत अच्छा कमाल का केस मिल गया। ऐसे कहते हैं ना, पेपर जो निकलता है, आपके इंटरनेशनल पेपर जब निकलते हैं, यार वाह ये तो बड़ा डॉक्टर के लिए आप केस है, पेपर है, ये बड़ा अच्छा केस है, इससे तो मिलेगा पैसा, राइट, बिकॉज आप उसको दे चुके हैं, वेलकम नोट दे चुके हैं, आओ हमें फाड़ दो, लूट लो हमें, अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है। तो बेसिकली अब कंडीशन हमारे हाथों में है कि हम उसे कैसे जीते हैं। तो अभी आपको जो नींद आ रही थी ना, ताली बजाने से बंद हो रही है, ये छोटी सी एक्सरसाइज आपने भी करी, राइट। सोचिए अगर आप इसी तरह की एक्सरसाइज करते जाएं तो आपकी नींद खत्म हो जाएगी, आपको एक्टिविटी आ जाएगी, आपके अंदर जोश आ जाएगा, पेपर्स लिखेंगे, लोगों से बात करेंगे, और जितनी आप बातें करते जाएंगे, जितना आप एक्टिविटी इन्वॉल्व होते जाएंगे, उतने आपकी इमेज बढ़ती जाएगी। लाइफ को जीना है, काटना नहीं, बस रिपीट करना। थैंक यू। देवेश जी, और भी सवाल है?
बट हमारा मानना ये है कि इतना कुछ सुनने के बाद आदि से हम सिस्टमैटिक थोड़ा सा लाना चाहते हैं। 1 बजे को हमारा लंच टाइम है, तो आज हम लंच टाइम मिस ना करें टाइमली। तो बहुत सारे लोगों के पास सवाल होंगे, वो आपसे पर्सनली भी पूछना चाहेंगे, इंटरेक्ट करना चाहेंगे। तो मैं सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ, आपको थैंक यू कहते हुए, बाकी सबको भी थैंक यू कहते हुए। बाहर रिफ्रेशमेंट है, तो चाय नहीं है, हमें पहले ही पता है, अगर चाय देंगे तो आप सुना देंगे। तो हम लोगों ने शिकंजी रखा है, तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन। तो किसी को कुछ पूछना है तो शिकंजी पीते पीते देवेश जी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया, और प्लीज ऐसा रिक्वेस्ट कि एक बार आप सोचिए अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में, यू फील मोर प्राउड एंड हैप्पी। थैंक यू।